जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. Assalamu alaikum everybody. We're going to start the session now. So welcome everyone. So this is the first session हमारे जो एक development course की series है. As we all know कि it consists of these basic trainings, concepts पे और activities पे which is going to help us build our business plan and the pitch at the end also. और generally हमें वो strategy और tools वो सीखेंगे जो entrepreneurship में और methodology जो entrepreneurship में employ होती है. So before we begin, I would just like everybody to take 3 minutes or what are your expectations from this course? Write 3 expectations in bullet form please. So you have 3 minutes. It's 38 right now, the 41 पे. जी अस्सलाम वालेकुम. वेलकम कामिल हसन. क्या हाल है आपका? अच्छा, you guys have 2.5 minutes now. We've just started. So I would just like everybody to write down on the piece of paper that you have 3 expectations in bullet forms from this course. And this course is part of our incubation program. So and I would request कि सब अपने cameras on रखें because virtual है, ये कोरोना की वजह से we are doing it remotely. Otherwise, you know, there are enough barriers in the sense कि हम personally available नहीं हैं और face to face नहीं हैं. तो उसमें कैमरा तो ज़रूरी है सबके साथ. Okay, 30 seconds left. जी वेलकम एलिज़ा. चलो एलिज़ा जल्दी से जो है you have to write down 3 bullet point की फॉर्म के अंदर expectations you have from this course जो हमने सारी डिस्कस किया कि we're going to do these training hours. 3 expectations क्या हैं? Again मैं रिक्वेस्ट करता रहूँगा प्लीज़ कैमरा ऑन रखें. Okay, 10 seconds. And we can just finish. So off the top of your head, right? This is बहुत deep thinking वगैरह नहीं है ज़रूरत. वो आहिस्ता आहिस्ता भी आएगी. चलें. Thank you everybody. Okay, so now as we discussed, course का जो flow है over these 15 to 18 sessions, that's going to start with understanding के design thinking क्या है, उसके tools basic क्या है, methodology, what does it mean. उसके बाद हम market research को देखेंगे. How do we understand the customer? How do we understand what's going in the market? How do we understand the forces in the market? How do we understand the value propositions? और वो tools क्या हैं जो हम apply करके हम सारे stakeholders को और सारे processes के लिए हम planning करेंगे और strategy भी बनाएंगे. To understand, then to plan, then to strategize. उसी तरह जो हम problems लोगों के समझते हैं उनके solutions ideate हो के best solution pick करके उसको हम मॉडलिंग में लाएंगे और वहाँ पे हम अपनी assumptions जो हमने टेस्ट करनी है जो हमारे मॉडल और solution to मॉडल लाएँ, assumption testing और planning यहाँ पे आएगा. That's about mid of the course. And then we need to go to market. So उसके tools क्या हैं, strategies क्या हैं, marketing की strategies क्या हैं, 21st century के अंदर what does it mean and how do we go through things और training. But so how do we turn the model into a business? Or then of course very crucially how do we
finance this business. Not just how do we put the money in, but first we need to figure out कि इसका marketing कैसे होगी, demand forecasting इसकी क्या है, इसका हम लोग किस तरह इसको देख रहे हैं कि इसका हायर एंड और लोअर एंड और मिडिल एंड के मॉडल्स किस तरह हम फोरकास्ट कर रहे हैं, और उससे फिर हम फाइनेंशियल्स ड्रॉ करके अपनी प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे और उसके बेस के ऊपर वैल्यूएशन सीखेंगे किस तरह बिजनेस की करनी है, एंड देन इवेंचुअली विल लर्न हाउ वी कैन टेक दिस एंड टर्न इट इनटू एन एक्सप्लोसिव पिच. And as we all know, the time is always now. There is a tomorrow, there is a yesterday, but the time to act is now. So आज का session more or less is going to be about leadership, it's going to be about success, and then we're gonna understand these and do some introspection and come up with those reasons or those meta reasons जिसकी वजह से हम drive करके यहाँ तक जा रहे हैं जिस journey पे हैं. So then we'll come up with a vision and a mission statement at the end of today. To start off, we need to think about success, right? Like, what does success mean to you? A lot of times it becomes the measure of a person. So Abhi, I would just like you to take 1 or 2 minutes to think about it and then write out a statement, 1 or 2 lines ki. Okay, what does success mean to you? You can also name things. For some people money, for some people it's fame, for some people it might be other things. So what does success mean to you? अलीज़ा, पेन और पेपर पे ना आप अपने लिए लिखते जाओ, ठीक है ना? we're not sharing it right now, just write it for yourself. और अगर कैमरा ऑन कर सकते हो, माइक तो भी म्यूट रखो, बट माइट नीड इट. ज़ुबैर की आवाज़ आ गई फाइनली. ज़ुबैर, वैसे तो आई एम ग्लैड कि यू कैन हियर अस नाउ. हाँ, माइक ज़रा प्लीज़ म्यूट करके रखना. And I think it's important to write these things down, not just have them in your head, because it's very easy to escape from yourself. And इसके अंदर I think there are no right or wrong answers, right? There are just maybe sometimes they are smart answers, or sometimes they're to be pondered upon. Sure, in 20 seconds. Okay. I would like everybody to write a definition of a leader in a single sentence. And again, let's give it 2 minutes. 2 minutes to think about, 30 seconds to write, so 2.5 minutes.
1 minute. Mark. Okay. Thank you. अच्छा अब जो है आई वुड लाइक एवरीबडी टू राइट डाउन 3 बुलेट पॉइंट के अंदर टास्क्स विच यू डू फॉर वर्क ऑन अ डेली बेसिस स्पेसिफिक हों थोड़े लेकिन इफ़ यू लेट्स से यू डिज़ाइन ग्राफिक्स इफ़ यू रिसर्च न्यू इनोवेशन तो दैट्स समथिंग दैट यू डू स्पेसिफिकली टास्क्स जो डेली आप रेगुलरली करते हैं अपने वर्क पे आप और बेहतर हो गया देर यूनिक टू यू इन द सेंस कि दैट्स योर कंट्रीब्यूशन टू योर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉज You have another minute to think about it and write it. Think specific, regular daily tasks which you perform at work. Thirty seconds. Thank you. Are we all caught up? Are we with each other? Are we all together अभी तक? Let's hear a hey. Okay. Yeah, thumbs up. जो इन्होंने कैमरा लगाया thumbs up will also work. Great. Okay. अभी इस वाला एक और क्वेश्चन है मेरा आपसे और ये वाला क्वेश्चन शायद मेरा फेवरेट क्वेश्चन हो क्योंकि ये शायद मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन रहा भी है और अभी भी टाइम टू टाइम रहता है. What is it that gets you out of the bed early in the morning? Like really, what is it? Not like that something you want कि जी ये मुझे उठाए सुबह सुबह. लेकिन what is it actually that gets you up in the morning? You know, one or maximum 2 चीज़ें. Bullet points में, please. क्या करना है मैंने? दफ्तर जाना है. मैंने पौधों को पानी देना है. ठीक है चलें.
Now, I would like everybody just to think about this. I mean, entrepreneur is a word which you've heard, which we hear in the context हम बात करते हैं. तो entrepreneurship is the first word comes to define कि जो जिस चीज़ के अंदर हम occupied हैं लगे हुए हैं डेली के अंदर. It's the biggest, broadest, I think, most specific term also, right? Entrepreneurship, and of course, for entrepreneurship there is an entrepreneur. So I would like everybody to write a statement with 3 characteristics of an entrepreneur in that statement. यहाँ पे 30 seconds के लिए I'm just going to turn the screen sharing off, and I would like to hear from you guys the answer to the last question. What is an entrepreneur? Acha, there's a way. Here I will introduce this first sort of thing of value. So एक ऐप है Clubhouse. ये Clubhouse पहले Android पे नहीं था, अब Android पे हो गया. It's about I think 5-6 months. That is like the entrepreneurs network right now across the world. You have a lot of trainers, a lot of VCs sitting there. So I would request everybody कि आप पहली बात तो Clubhouse अपने इंस्टॉल करें, सब अपने ना फ़ोन पे, और उसके लिए इनवाइट ओनली है. So what you can also do is if you have me as in your network, so वो आप करेंगे तो I can accept your invitations. ठीक है. वो लिमिटेड इनवाइट्स भी देते हैं, तो मैं हर एक को इनवाइट नहीं कर सकता, अदरवाइज आई वुड हैव ऑफ कोर्स एक्सटेंडेड दैट. लेकिन आप इंस्टॉल करके कर लें और मुझे से कर लें तो मैं आपको एक्सेप्ट कर सकता हूँ, राइट. सो ओके. उसमें एक ये प्रैक्टिस है कि जब किसी ने बोलना होता है तो माइक फ्लैश कर लेते हैं, या फिर अगर ऑडियंस में होते हैं तो हैंड रेज कर लेते हैं. तो यहाँ पे भी आई थिंक आई बिलीव इज देयर अ हैंड रेज की ऑप्शन इन गूगल मीट? आई डोंट सी वन. सो व्हाट आई गेस व्हाट वी कैन डू इज यू कैन रेज योर हैंड, राइट, आई मीन वीडियो लगा के. अगर आपको कोई कैमरे के अंदर मसला है तो प्लीज़ डू लेट अस नो व्हाट द इशू इज़, एंड मे बी वी कैन हेल्प यू आउट विद दैट आल्सो. बट ओके, सो हु इज़ गोइंग टू गो फर्स्ट? जी प्लीज़ हसन. जी, so basically entrepreneur is someone who actually starts a business or a new initiative, takes financial and social risks in hope of a success and making profits. Business, risk, profit. Yeah. Okay, new, something new, business, risk, profit. Those are the words I picked out from there. Okay, great. Anybody else? Adil, Kamal, Ali, AQ, Eliza. So you can say what is an entrepreneur, and you can say कि जी इस तरह का होता है, ये उसकी characteristics हैं. ठीक है ना? For me, I think entrepreneur is a person who is a leader, who does work with diligence and calculates all the risks expected and add value to the society. Leads, calculates risks, and adds benefit. Those three things I picked up from there. Great, good one. Okay. अच्छा, तो ओवर द इयर्स ना इस वाले क्वेश्चन के साथ बड़े weirdly जो जे है ना, जीम है, वो लफ्ज़ बड़ा जोड़ सा गया है मेरे लिए पर्सनली. मेरी वर्कशॉप्स के अंदर आस्किंग दिस क्वेश्चन, कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर ना कई लोग कहते हैं जी क्या होना चाहिए एंटरप्रेन्योर को? जी जुनूनी होना चाहिए. वुड यू गाइस एग्री विद दैट? सो दैट्स वन चेक फॉर द जे. दैट्स वन चेक फॉर द जे. अच्छा, कहते हैं जज्बाती भी होना चाहिए. वुड यू गाइस एग्री विद दैट? Yes, sir, absolutely, absolutely agree. जज्बाती भी होना चाहिए, जुगाड़ू होना चाहिए. होना चाहिए. Oh yeah.
A जुगाड़ू big होना yes. चाहिए. A big yes from Eliza there. Okay. और कोई वर्ड सोच सकते हैं जीम या जे से? जुनूनी, जज्बाती, जुगाड़ू. या कोई इस तरह की और टर्म अगर निकल आए, लेकिन यू नो जे हैज़ बिन अ कॉमन थीम. अभी और भी हैं. दिल जवान होना. जवान भी होना चाहिए. एब्सोल्युटली. गुड वन. Jigar. जिगरा होना चाहिए. Yeah. बेशक. जुगाड़ू, जुनूनी, जज्बाती, जवान, जुगाड़ू, जुनूनी. So okay, so those are, I think, some interesting and very valid terms to entrepreneurship. So as we discussed, अच्छा मैं screen sharing, I will just turn the screen sharing back on. And you know, if you come up with other gems, so let's share them in the group over time. And now we have a WhatsApp group, so that's like the most active communication platform we have. और जिस वक्त हम marketing और सोशियोलॉजी ऑफ मार्केटिंग पढ़ेंगे उस वक्त हमें रियलाइज़ होगा कि ये कौन सा जो प्लेटफॉर्म है वो किस तरह के इंटरेक्शंस के लिए बेस्ट है, रियल टाइम से लेके डिलेड और क्या क्या है उसमें चीज़. सो एनीवे, गेटिंग बैक हियर. सो यस, सो एन entrepreneurship is about creating something new. It's about creating new wealth also. I'm identifying, discovering wealth at times, creating new businesses, uh, creating and delivering that value which people seek and which are going to make people's lives better. It's also about creating jobs. And an entrepreneur is somebody who undertakes a certain risk and takes an idea or a product to market. They identify new opportunities and they are followers of innovation so that they make things even better. Ji Adil. Sorry, we are not getting the presentation. Achha. Check the progress. Sure. Let me try again. सर वो प्रेजेंटिंग है ना, थोड़ा सा डिले आता है गूगल मीट के अंदर, like 10 seconds का. Is it visible now? Yeah, now it's good. Yeah, it's Yeah, Oh, it's good. great. Great. So we spoke about what is entrepreneurship. So about creating something new, wealth, jobs, new opportunities, bringing value. And somebody who does this is essentially an entrepreneur, right? बट एंटरप्रेन्योरशिप की जब हम बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये जो सारे एंटरप्रेन्योर्स कर रहे हैं उसमें ओवरऑल इम्पैक्ट क्या हो रहा है उससे, मार्केट के अंदर, सोसाइटी के अंदर, वर्ल्ड के अंदर, लोगों की लाइफ्स के अंदर, मैक्रो लेवल पे, माइक्रो लेवल पे सारा. व्हाट इज़ दिस noun of entrepreneurship doing? When we're talking about an entrepreneur, we're talking about the members or the actors from the perspective कि जो ये नए रिस्क लेके नए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज लेके जाते हैं मार्केट में, अपॉर्चुनिटीज़ आइडेंटिफाई करते हैं और इनोवेशंस लाते हैं. इनोवेशन या वो किसी प्रोडक्ट या वैल्यू या सर्विस के अंदर लेके आ रहे होंगे या बिजनेस मॉडल्स के अंदर लेके आते हैं. And when all of this happens, right, like of course, if you think about the big events in human history, like industrial revolution हो गया, digital revolution which we are experiencing हो गया. So you know, this has a great impact on economy, right? Economy is about how demand and कि goods कैसे move कर रही हैं, things of values कैसे exchange हो रही हैं between society members, right? That's what, and that could be through money or it could be barter systems. There are multiple systems within an economy. एंड इवन एट ए गिवन टाइम आपके जो यूनिट्स ऑफ द इकॉनमी होते हैं, आपकी फैमिली के अंदर जो इकोनॉमिक साइड ऑफ द एक्टिविटी जो हो रही होती है रिलेशनशिप्स के अंदर, वो वहाँ से लेके गिफ्ट लोग देने से लेके एक दूसरे के लिए छोटे छोटे काम करने, इनोवेशंस शेयर करने से, जुगाड़ शेयर करने से, यू नो, सो ऑल ऑफ द थिंग्स विच आर हैपनिंग विद इन सोसाइटी बिटवीन एंड एंटरप्रेन्योर्स अ लॉट ऑफ टाइम्स आर इनेबलिंग पीपल टू डू ऑल ऑफ दिस, राइट? सो दिस क्रिएट्स न्यू बिजनेसेस, इट इनकरेजेस इनोवेशन, जॉब्स क्रिएट होती हैं, नेटवर्क्स ज़्यादा बिल्ड होते हैं जिससे पीपल आर कम टुगेदर फॉर सर्टन कॉजेज़ एंड पर्पसेस. उसमें इन्वेस्टमेंट्स इसकी वजह से जब आती है अपॉर्चुनिटी के अंदर तो उससे भी एक वेल्थ क्रिएट होती है. प्रॉस्पेरिटी और डेवलपमेंट का एस्पेक्ट जो है वो स्टेप बाय स्टेप डेवलप होता है. हेलो मोहम्मद अली, वेलकम बैक. लीड्स टू इंटरनेशनल ट्रेड, राइट?
Another way to look at entrepreneurs is through looking at what sort of or type of an entrepreneur are they, and there are many types of entrepreneurs. So just to get an idea, four possible types we can look at. We're going to look at our business entrepreneurs, social entrepreneurs, lifestyle entrepreneurs, and serial entrepreneurs. We're talking about business entrepreneurs too that come up again and again in a local context internationally. So who's familiar with these two faces? बोथ दोनों शक्लें कौन पहचानता है? Right, so most of us. Thank you. So Richard Branson का कौन सी सबसे नई जो चीज़ है because of which he's been in the news lately? Virgin Galactic. Virgin Galactic, बिल्कुल. What is Virgin Galactic? It's a space tourism company which takes a person from ground station to the space for Absolutely. So it's commercial now and open to private citizens, where space was not before. Same way, although मतलब local context की big example, mostly when I talk about people मतलब पाकिस्तान के अंदर businessman लोगों को मैं कहता हूँ ना सबसे पहले लोगों के mind में मलिक रियाज आता है. So इसलिए he is a business entrepreneur, right? Working in the space of real estate. और कोई business entrepreneurs आपके ख्याल से that comes to mind? सर वो बाइकिया वाला एक Like मुबीन आई गेस नाम है उसका, right. और एक और भी है So how logistics happen, how things are delivered, right? करीम वाला वो उन्होंने disrupt किया business. Okay. या एग्जैक्टली करीम ने तो सर फर्स्ट मूवर एडवांटेज दिया. So अब business strategy और entrepreneur strategy में हम थोड़ा सा differentiate करते हैं, right? One entrepreneur may have many businesses, or a business may have multiple entrepreneurs in it, right? यहाँ पे अभी हमने शुरू भी चुकी है, we're talking about entrepreneurs because essentially देखो दुनिया तो जो है वो लोग ही है ना कुछ कर रहे हैं eventually जाके, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के भी जो सब यूनिट्स होते हैं वो लोग ही होते हैं. So then there are social entrepreneurs, and a big example from Pakistan is Akhuwat, right? जो माइक्रो फाइनेंस के अंदर काम कर रहे हैं. So they're doing such a business जो कि एक्चुअली उसका मेन फोकस सोशल इम्पैक्ट या सोशल डेवलपमेंट है, और उनका प्रॉफिट मॉडल भी बीच में है. और द अखुवत इज़ अ नॉट फॉर प्रॉफिट. सो अभी मैं आगे बताऊंगा कि ये नॉट फॉर प्रॉफिट के मॉडल्स और फॉर प्रॉफिट के अंदर क्या फ़र्क है. I have been quoted as being a social entrepreneur because of the Knowledge Factory, because that was such a space जो कि लोगों को एक फ्री एक्सप्रेशन प्लेटफॉर्म दे रहा था, सेम टाइम उसका एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन और उसका सारा ऑपरेशन थे. स्पेस की बात करते हुए then we have serial entrepreneurs, such people who are involved in several businesses. They love starting up new businesses or taking existing startups to new heights. And if so this is the second recommendation of the day is to watch as much Shark Tank as you can. ठीक है ना. ऑब्वियसली वहाँ के और यहाँ के कल्चरल डिफरेंसेस और कुछ नॉर्म्स प्रैक्टिसेस और लीगल स्ट्रक्चर भी क्या है और लोगों को कितनी प्रैक्टिसेस पड़ी है उनमें है फ़र्क. बट फॉर श्योर हमारी इकॉनमी जिस तरह मैच्योर हो रही है और स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं तो वी आर इन लाइन विद गेटिंग टू दोज प्रैक्टिसेस. फॉर एग्जांपल सेफ एग्रीमेंट्स जो हैं अभी बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है, समझे नहीं जाते हैं. एवेल्यूएशंस तो बहुत ज़्यादा अभी कॉमनली लोग नहीं समझते हैं कि क्या उसका पार्ट क्या है इस सारी चीज़ के अंदर. So and these things, this show or clubhouse, as much as you hang out, talk to people, interact with people, find understand how they're thinking, try to get into the issues, उतना आपका अपनी जर्नी के और अपनी फ्रीडम्स इन द सेंस कि आप क्या क्या कर सकते हैं, आपकी अपॉर्चुनिटीज और ऑप्शंस क्या है लाइफ में, दैट यू विल ग्रो रिच इन दैट. Sir, some people say that Raj Kaiwala is also an entrepreneur. So though like it's a controversial though. If he fits the definition, और अभी आपने definition दी, कुछ लोगों ने शेयर की, कैरेक्टर्स शेयर किए. So entrepreneur is again somebody who brings a new thing or a new idea or an innovation and takes it to market. ठीक है, let's stick to that definition. Obviously ब्रॉड भी हो जाती हैं कई दफ़ा चीज़ें और नैरो भी हो जाती हैं. यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट समझना चाह रहे हैं, और ये आपका इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इस तरह से है कि अभी आगे हम देखेंगे कि बिकॉज दिस सेशन इज़ गोइंग टू बी मोर अबाउट आवरसेल्फ. ठीक है ना, आगे हम बिजनेस टूल्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे, बट ऑब्वियसली वे द वंस हु हैव टू डू दिस. सो इट्स इंपॉर्टेंट वी अंडरस्टैंड कि वेयर वी स्टैंड एंड व्हाई वी आर डूइंग इट. ठीक है ना, और मे बी इवन हाउ वी कैन डू इट, सीइंग कि हाउ अदर्स हैव डन इट. राइट.
So this is about taking inspiration. This is not about putting things in a box. So now serial entrepreneur ऐसे लोग, so somebody can be a serial entrepreneur and a social entrepreneur at the same time. ये कोई hard checks नहीं है कि ये होगा तो वो नहीं होगा, right? इसी तरह you could see somebody who's a lifestyle entrepreneur, right? Like Maria Bhatt हो गए, like Junaid Jamshed हो गए. They're people who have influenced lifestyles. ठीक है ना, made businesses out of them. Can you think of any other lifestyle businesses or brands? Cricketers. Okay. Cricketers, their lifestyle was शायद अफरीदी. बिल्कुल, absolutely. और वहाँ पे they have this certain symbol, a person who represents the persona of that crowd, and then that this person has that influence जो लोग भी फिर follow करते हैं. So you know, when we're talking about bringing new ideas, innovation into market, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं which we can do commercially in the sense कि we can do it for profit. कुछ ऐसे causes या हमारी dreams होती हैं, entrepreneurs की dreams होती हैं which they can't do for profit, but they can do for a not for profit, by making it a cause-based thing, by raising funds for it, by getting donations for it. So fundraising and donation in the not-for-profit world is somewhat like marketing in the for-profit world. और तो उसमें मार्केटिंग होती है, बट इन द सेंस कमर्शियल मार्केटिंग. ठीक है ना, यहाँ पे आप कॉज बेचते हैं, आपके डोनर बाइज इनटू दिस इनटैंजिबल वैल्यू जो वो फील करता है. ठीक है ना, टैंजिबल एक वैल्यू होती है चीज़ों की, एक इनटैंजिबल होती है, जो टच कर सकते हैं, नहीं टच कर सकते हैं. इसको भी हम इतना कोई रख के तो आगे चलते हैं. सो ऑफ कोर्स वंस we get into the market, and there's so much happening in the market, things are changing very quickly. There are formal networks और informal networks होते हैं, deep networks भी होते हैं, बातों के पीछे context भी होते हैं. So जब ये सारा होता है तो there are a lot of uncertainties which an entrepreneur has to deal with. Then obviously नया idea जो होता है उसका risk बहुत ज़्यादा होता है. So getting people to buy in, right? And you need finance, you need money to run. I mean, I equate for a business, money is like blood to a body. ठीक है ना, आपको वो चाहिए डिफरेंट ऑर्गन्स तक पहुँचे. इट्स नॉट द हार्ट, मनी इज़ नॉट द हार्ट. आई मीन इफ़ यू डू प्रॉफिट, अब ग्रीड के साथ हम पैसे चेज करते रहेंगे तो देर नॉट अ लॉट ऑफ सक्सेस स्टोरीज वी सी, और इफ़ वी सी एनी तो देर लाइक क्विक स्टोरीज एंड देन दे हैव अ डाउनफॉल. अगेन ये अब आप हिस्ट्री के किस तरह स्टेटिस्टिक्स इंटरप्रेट करते हैं, आई सबमिट कि इसमें इसका थोड़ा सा हाथ है बाद में. बट एक टिपिकल इफ़ यू लिसन टू द टॉप बिजनेस वर्ल्ड लीडर्स राइट नाउ, so they have this giving sort of a philosophy which we're going to touch upon today. And it's also of course the challenge कि जी मैं जो चीज़ चेंज कर रहा हूँ, मेरे माइंड में एक्सेलेंट सोल्यूशन है, मेरे माइंड में जो मैंने सोल्यूशन से कि प्रोडक्ट बनाया है इसकी वैल्यू भी बहुत आला है, लेकिन एक्चुअली कितने लोग वो मानते हैं भी. ठीक है ना, बिकॉज विल डिस्कस व्हाट द वैल्यू ऑफ समथिंग इज लेटर ऑन इन द कोर्स. बट राइट नाउ ऑब्वियसली फिर नई चीज़ होती है, लोगों को बैरियर्स भी होती हैं, लोगों ने हैबिट्स कायम की होती हैं, हिलना नहीं चाहते, चेंज कराना हैबिट बड़ा मुश्किल होता है. देयर ऑब्वियसली बैरियर्स. फिर मार्केट के अंदर प्लेयर्स बहुत ज़्यादा होते हैं जो आपको रोकते हैं, कई दफ़ा कार्ड के नीचे फेंक देते, समझ नहीं आती क्या हुआ. और पाकिस्तान की यू अंडरस्टैंड एक पोस्ट कॉलोनियल, मेरा ओपिनियन है कि हमारी एक एक्सप्लॉयटेशन माइंडसेट है हमारी ना, मतलब जनरली सोसाइटी और मार्केट का, कि अगला जो दुकान जो आया है मार्केट में उसको पूरा निचोड़ लो. ठीक है ना, आई एम नॉट सेइंग एवरीबडी हैज़ इट, बट आई थिंक इट्स बिन कॉमन, एंड आई थिंक उसकी चैलेंजेस जो हमारे सोसाइटी के रहे हैं उसकी वजह से प्रॉब्ली, नॉट टू ब्लेम पीपल, आई थिंक लोग तो लॉट ऑफ टाइम्स इन देयर प्लेस. एंड देन देयर आर लीगल इशूज़. आप नई चीज़ करना चाहते हैं वो अलाउ नहीं करता कई दफ़ा कोई. ठीक है ना, सो वो हाउ डू यू गेट अराउंड दैट. सो ऑल ऑफ दीज चैलेंजेस आर समथिंग दैट एंटरप्रेन्योर कम्स अक्रॉस. ही प्लान्स फॉर देम, ही अंडरस्टैंड्स देम, प्लान्स फॉर देम, brings everybody together and then takes things ahead. So when you're talking about on characteristics, जो जुनूनी, जुगाड़ू हो, जज्बाती भी हो, जमाती भी होना चाहिए उसको, not in the traditional sense, right? So somebody who brings people together also, right? And then obviously creativity and everything. So now here at this point I would like to introduce अब बस एक प्लेथोरा ऑफ सक्सेस फिलोसफीज़ अब दुनिया के अंदर एग्जिस्ट करती हैं. इस वक्त आप देखें बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स भी हैं, बहुत सारे मोटिवेशनल कोचेस भी हैं, प्रोग्रामिंग कंसल्टेंट्स भी हैं. ठीक है ना, विच गेट पीपल टू गो टू डू समथिंग विच essentially either they want to do or they want you to do or somebody, right? So motivation philosophy, and if you track the root of it for at least this modern times,
So I believe the father of this, and this is a common thing, is a guy named Napoleon Hill. Napoleon Hill की थोड़ी ज़रा history ऐसे है कि First World War से Second World War तक the biggest industrialist in the US was Andrew Carnegie. He had the biggest industrial empire. और Napoleon Hill को basically Andrew Carnegie ने commission किया था to write a philosophy of success. And he gave him access to अपना businesses, अपने networks, अपने people, अपने friends in their networks and businesses. And almost for 30 years, Napoleon Hill studied all of these peoples and came up with he came up with a philosophy, the basic principles and philosophy, I think 4-6 साल के अंदर, but he researched and did this work for over 30 years. और वो जब commercially उसकी book निकली तो उसके publisher ने उस book का नाम रखवाया Think and Grow Rich, which you may have heard of. So in that book there is a modular framework and a lot of research and examples. So I would really recommend for everybody to read that book. But essentially इस वक्त I want to talk about the 17 principles of success जो Napoleon Hill ने posit किए, जो again he said कि ये common traits हैं, ये common वो behavior हैं, ये चीज़ें हैं जो ये successful business leaders कर रहे हैं, और उन 17 चीज़ों को उसने इस book form के अंदर present किया. I'm just going to read off the top. So the first thing he said is you need a clarity of the mind and definiteness of purpose, right? But the thing is this, so you are born with two envelopes. One is your best top potential, and the other one is what life may give you. It could be anything. Now if you have clarity of mind and you control your mind and you direct it and you have those clear goals and have that definiteness of purpose, that is the gift and the blessing, the manifestation of your highest fate, which the creator has intended for you. Whereas if you don't take this responsibility, this clarity of mind in your hands, then you can be anywhere, then be happy with what you get, right? Anything that your mind can conceive and think, it can achieve. Remember this. And in fact, आप Google करें, Einstein का भी बिल्कुल यही lines पे quote है. Anything that the human mind can think of, it can manifest. Right? उसमें rationality थोड़ी सी एक validity का principle है, but वो book पढ़ें. And then of course it needs somebody you to do something. So you need to take this personal initiative. You have to have a pleasing personality. You need to identify certain people with whom like-minded sort of जिसको कहते हैं. And you need to create these mastermind relationships with them. उनको आप align करें, अपने आप से align करें. Always give more than what you're getting. You need to have a positive mental attitude, and with it you need to have this creative vision, right? Like something which gets people enthusiastic about things. It captures their mind also with you. You need to practice this applied faith, not just faith, but you need to practice applied faith, which is meant for you by this intelligent being. And this will drive you into learning in you learn in adversity and defeat. And these failures, when you fail, will pave the way for you, and through accurate thinking, you will go that extra mile, and you will, once you have, you're controlling your mind and you have that clarity, and you have this controlled attention, and you have the relationships, mastermind relationships worked out, then you can drive this cosmic life force, this cosmic habit force. It will work for you, right? Now in this, self-discipline is one of the top things, right? Keep on at it. It's like you have to एक गाड़ी चल रही है 3 पहियों पे, आप उसका चौथा पहिया है, आप घूम रहे हैं, आपने जाके उसके साथ फिट होना है, उसके पेस के ऊपर. कभी आप तेज़ होंगे, आहिस्ता होंगे, लेकिन जाके आपने उसके साथ फ्लो के अंदर करना है. इसमें आपको डिसिप्लिन चाहिए होगा. वंस यू आर पार्ट ऑफ द मूविंग व्हीकल, देन योर पेस विल ऑल्सो डिटर्मिन हाउ द कार मूव्स, नॉट जस्ट हाउ द कार इज मूविंग विल डिटर्मिन योर पेस. फर्स्ट प्रायोरिटी इन लाइफ, प्लीज़ रिमेंबर, पहली ज़िंदगी के अंदर, और ग्रैटिट्यूड बेस्ड लाइफ होने के साथ पहली चीज़ जो आप ज़िंदगी के अंदर कर सकते हैं वो अपनी हेल्थ का ख्याल करें. अपनी मेंटल, इमोशनल, फिजिकल, स्पिरिचुअल, सोशल हेल्थ. You must realize where you stand. Only then you can plan and think accurately, right? And in this, obviously, you need to budget 2 things, which is time and money, because they are your key resources or tools even. और जब mastermind relationships आती हैं, obviously उसके अंदर कुछ आपके peers होंगे और कुछ आपके subordinates होंगे और कुछ superiors भी होंगे. A lot of times for businesses, they consider their customers as their superordinate.
So you need teamwork across all of these sort of dimensions. I'll just give a few seconds for us to think about this, digest it. किसी के कोई इस पे thoughts हैं तो I would love to hear them. और मैं ये बात ऐड करना चाहूँगा कि अभी तक मैं आई हैवंट रन अक्रॉस एनी मोटिवेशनल स्पीकर और फ्रेमवर्क इंक्लूडिंग फ्रैंकलिन कवी का, इंक्लूडिंग टोनी रॉबिन्स का, इंक्लूडिंग ये इवन स्केटमा का, जो कि इन 17 जो एक ये ग्रांड नॉर्म्स हैं, आप समझ लें फादर ऑफ नॉर्म्स हैं, फादर प्रिंसिपल्स हैं, इनका सबसेट डाउन. आई थिंक नेपोलियन हिल की काफ़ी होलिस्टिक फ़िलासफ़ी है. तो काफ़ी जो लोग हैं आप देखें तो वो इसके बीच में से 2-3 चीज़ों को मिक्स करके उसका एक इंसाइटफुल विजडम लेके तो वो अपने फ्रेमवर्क्स लेके भी अप्लाई करा रहे होते हैं और उसमें भी अचीव कराते हैं लोगों को सक्सेस. और ये जो अभी 17 प्रिंसिपल्स हैं, वंस यू गेट एंड देयर इज अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड यू नो इसके कोचेस भी हैं, ट्रेनर्स भी हैं, वर्ल्ड वाइड ये पूरा सिस्टम और प्रोग्राम है, फाउंडेशन भी है विच रन्स एंड होल्ड्स द राइट्स टू ऑल ऑफ दिस. There's a lot of information available. I, in fact, have some material which if you're interested, I might share with you later. You can ask me. So, इस पे अगर किसी को कोई thoughts वगैरह हैं, वरना otherwise I will move to the next slide. Do you agree with this, or do you think that this leaves something to be desired, or can you relate to this somehow with your life? Yes, Hassan Shahzad is giving me a big thumbs up. Hello, Siptan, welcome. I will take, you know, legal principle है और वकील साहब मुझे validate करेंगे. Silence is acquiescence. It is indeed, it is. सही है ना. So आप अगर चुप रहे हैं तो आप जैसे आपने मान लिया. Development और सॉरी वाकई मान रहे हैं. अल्हम्दुलिल्लाह मास्टर. आप अपने दिल की माने. अगर कोई बात मैं कह सका जो दिल से रेजोनेट करती है वो अल्लाह का मेरे पे एहसान है. सो अगर आप जुल्म में चुप रहते हैं तो आप उसका पार्ट हैं. आपका कस्टमर आपको कोई गलत बात कहता है, आप चुप रहते हैं. रहना आपने उससे गुस्सा नहीं करना, लेकिन आपने चुप नहीं रहना, आपने प्यार करना है वापस. राइट. अच्छा, सो हियर देन लेट्स टेक दीज थॉट्स व्हिच वी हैव एंड शेयर आवर डेफिनेशन ऑफ अ लीडर. Zubair, what is a leader? Assalamualaikum, sir. Walaikum assalam. Sir, a leader is someone who leads, who manage, who oversees people, who collaborate. वैसे ना मैनेजर और सुपरवाइजर ये वाले वर्ड जो आपने यूज़ किए उसके लिए तो मैनेजर और सुपरवाइजर नहीं रखते टिपिकली. और लीड्स तो लीड ही से आ गया ना. सो उस वाली चीज़ के साथ एक ही चीज़ को डिफाइन करना मुझे उतनी अच्छी समझ नहीं देता कि ज़ुबैर क्या सोच रहे हैं. लेकिन ज़ुबैर का ये मतलब है somebody who gets others to follow and do what he wants them to do. This is what you mean to say. This is what I heard actually. So the meaning behind the words is very important. I mean, just as a by the way thing. But other definitions, Ji Adil, what do you think? I think leader is a person who inspires his team to achieve their collective goals. Excellent. I like those words. Inspires, collective, achieve. The good power and inclusive words हैं ये. Great. Assalamualaikum. Walaikum assalam. Maybe leader is the one who creates the way for his team. Creates way or team. Great. Good words also. अच्छा, अब सो देर आर सम लीडर जिनको, और बॉस क्या आपके ख्याल से आपका जो बॉस है वो लीडर है? नहीं, a boss cannot be a leader. अच्छा. सो लेकिन फॉलो करना और इंस्पायर करना, क्रिएट करना, नए वेज डेवलप करना, आपको ये बॉस का काम नहीं है? नहीं, लेकिन a leader actually works with you. बॉस आपसे काम करवाता है. क्या लीडर और बॉस सेम पर्सन हो सकते हैं? They can be the same person, depends on the situation. लेकिन टिपिकली नहीं होता. This is what you mean, I heard. कि टिपिकली ये नहीं होता. बॉस जो है ना वो, और वर्ड भी वो इस तरह का है कि डंडे से दिमाग में आता है. Both No, the obviously men who work he is for someone himself, who and commands leader you. is a person who works for your team.
कमांड्स यू, वो उसने कमांड्स का उधर ही दूसरी साइड से वर्क्स फॉर मुझे आवाज आई. सो अब ये दोनों धातों की कहानी जो है ना सुननी पड़ेगी हसन भाई से. जी जी. तो बेसिकली अगर आप मैनेजर और लीडर की अगर डिफ्रेंशिएशन देखें ना, तो लीडर वो होता है जो कि सही काम करता है, और जो मैनेजर वो होता है जो काम को सही करता है. देयर इज अ डिफरेंस. हाँ, एक सही काम करना और एक काम को सही तरीके से करना. काम को सही. दिस इज द डिफरेंस. सही. कि अगर आप कोई आपकी टीम है और वो एक जंगल को काट रही है, जो लीडर होगा वो दरख्त के ऊपर चढ़ के देखेगा कि भाई उधर दरख्त हैं, सबसे ज़्यादा हमें वहाँ काटा होगा, उधर चलते हैं. और जो मैनेजर्स होंगे वो अपनी टीम को लेके चल रहे होंगे कि दरख्त को सही तरह काटो, चीज़ सही करो और ये करो. दिस इज द मेन डिफरेंस. तो द लीडर इज अ विजनरी, ही हैज़ अ विजन एंड ही इज़ एन ओवरसाइट. तो दूर की चीज़ें देखता है. और जो मैनेजर्स हैं दे आर मोर टैक्टिकल. सो इट्स अ डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेटजी एंड Strategy. Great. I think that's Leader actually good way to- paves the way for others to follow. He shows you the way कि हमें किस तरफ जाना है. He is the one जो आपको रास्ता बताएगा. Direction. And the team will follow him. Direction follow. Right. So in that sense, I mean, when we talk about leaders, there have been leaders who, you know, people have wanted and been inspired to follow. Right. And then there have been leaders who people have not had a choice but have had to follow. Right. So when we talk about how the leader as a boss is, so ये एक स्किटमा का फ्रेमवर्क थोड़ा सा मैं आपको उनके मॉडल पे बेस्ड ये एक फ्रेमवर्क और मॉडल मैं आपको दिखा रहा हूँ. So you know there are people, if you look at the bottom right, there are people who you have to work for, and then there are people you want to work for. ठीक है ना. And you know sometimes इन लोगों की अप्रोच भी फ़र्क होती है, या ये सॉफ्ट होते हैं या ये हार्ड होते हैं, वो मीठी छुरी वाली बात या फिर सख्त डंडे वाली बात. राइट. अच्छा, दूसरा उसके अलावा ना आपका जो लीडर होता है, आप जो कहते हैं कि जी वो लोगों की भलाई के लिए सोच रहे हैं, तो ही इंटेंट्स या उसकी नीयत या उसकी इंटेंशन कहाँ पे है, टू गिव टू पीपल. मेरे बॉस ने आपसे काम निकलवाना है जिसने उसकी होती है मैंने इसको एक्सप्लॉइट करना है, ये मेरी रिसोर्स है, इसको माइन करो. वेयर एज जो टैलेंट को ग्रूम करने वाली बात है वो वाला थोड़ा ज़रा गिविंग साइड पे बॉस लीडरशिप आए. ये दरवाजा बंद करता है. So in that sense, you know, people who grow you, who you feel कि you know they care for you, and you're aligned with their vision or their goals, and you feel that authenticity. You want to follow them, and you're inspired by them. As compared to जी कोई आपको कभी ये चीज़ ऑफर करा के आप करना नहीं चाहते हो कोई काम, लेकिन वो आपको इंसेंटिव्स ऐसे दे रहा है, या वो आपको कोई डर लगा रहा है, या वो आपको कोई कैरेट दे रहा है कि जी ये ले लो, सैलरी मिलेगी हर महीने, यू नो. सो दिस इज कॉल्ड द टिपिकल कैरेट एंड स्टिक अप्रोच. राइट. वेयर एज जो स्किटमा का मॉडल है केयर एंड ग्रोथ का, दैट डिफरेंशिएट्स बिटवीन दिस कैरेट एंड स्टिक इनटू केयर एंड ग्रोथ. सो आई वुड फॉलो somebody who I believe cares for me and will grow me. That is the person I would want to follow, as compared to the generally who we have to follow is somebody who's giving us an incentive or you know driving us a certain way. अब इनके effects क्या होते हैं, maybe this is a time for another session, but I just wanted to sort of introduce here in the context of success and leadership and influencing people, right? And now we're talking about leadership. So when we talk about जो 4 common leadership theories या frameworks हैं जो सबसे common है, वो मैं आपके साथ share करना चाहूँगा. So you know some people believe that either I mean there is a question कि whether leaders are born or bred. ठीक है ना, वो पैदाइशी लीडर है या फिर उसको बनाया गया है, ग्रूम किया गया. Then there is a theory which says कि there are certain traits which takes to be a leader. So आप वो traits या abilities हासिल कर लें, and you will have that success and leadership, or those leadership qualities to get you that success. Conversely, then there is a way to look at it. You know, situations or events happen in life and places, space and time, or within people, and these trigger certain individuals to act in a certain way, to uphold some values, to chart new territories or some goals, and this is called the situational theory of leadership. ये सिचुएशन की वजह से वो लीडर बन गए. नेल्सन मंडेला जेल में डाला एक कॉन्टेक्स्ट के अंदर, when he came out he became the president. गांधी because of subcontinent की इंडिपेंडेंस मूवमेंट
Steve Jobs, Apple is crashing, we need him back. Then there is the behavioral theory. कि actually आपके abilities, qualities or situations नहीं, it really takes how you behave to be a leader. In that sense, once we're talking about people, teamwork, the second framework of the person I would like to introduce is Dale Carnegie, जिसकी किताब है How to Influence People and Win Friends. And this is the other second recommendation I have. So even internationally तो ना no, my presentation is not frozen. Can you not see it? मेरी नज़र आ रही presentation? Yes. Actually, I am seeing. How to influence people and win friends. Other maybe it's a connectivity issue temporary. तो देख लेते हैं. Okay. So this is the other book. मतलब आप ये सारे मोटिवेशनल स्पीकर ये है ना, आप किसी भी पूछ रहे हैं, this is a given thing कि नेपोलियन हिल का और डेल कार्नेगी पढ़ा हुआ है हर एक ने. Like ये वो ग्रैंड्स हैं. Right, so this is the other book. Now Carnegie also has these principles which you need to undertake in, और उसका भी research based इसी तरह था, similar to Napoleon Hill. सर काइंडली आप प्लीज स्लाइड पिछली स्लाइड दिखा दें कि मैंने वो नाम नोट करना था. ये भी वैसे आगे भी आ जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट. ठीक है ना, आपको मैं बाद में शेयर भी कर दूंगा, डोंट वरी. So he says the first thing what you need to do is don't criticize, condemn or complain. All these slides इसके बाद, this meeting के बाद, can we get? मैं slides पे share कर दूंगा. Thank you, that would be great. Sure. So first thing he says is don't criticize, condemn or complain people, right? And this is now पहली वाली जो Napoleon Hill का is about personal. What do I apply on myself? Now we're talking about the social. Okay, now when I'm dealing with people, one to one हो या ज़्यादा हो, what are those things I need to do? First thing, do not criticize, condemn or complain. You need to give honest and sincere appreciation. छोटी छोटी चीज़ के अंदर ना आप देखें तो खुदा दिखता है. In that sense, किसी ने जो है आपके लिए थोड़ा सा रास्ता छोड़ा, किसी ने आपको पूछ लिया आपको कोई चीज़ चाहिए, किसी ने आपको कोई चीज़ दे दी. सो ग्रैटिट्यूड जो है आप हमारा ग्रैटिट्यूड बेस्ड लाइफ जो गिविंग लाइफ है उसके अंदर गिविंग डज नॉट मीन कि हम सब कुछ लुटा दें. हम होते हैं ना जी फन हो यार, तू ही है, तू मेरा दीन ईमान, तू मेरा सब कुछ. ठीक है ना. हियर गिविंग का ये मतलब है यू नीड टू गेट ओवर योर ग्रीडी डिज़ायर्स और उस मोमेंट के अंदर आपने राइट डिसीजन लेनी है. समटाइम्स आपने करेजियस होना है, समटाइम्स आपने ग्रेशियस होना है, यानी गिविंग होना है, कंपैशनेट होना है, बेनिफिशेंट होना है. ठीक है ना. सो व्हेन यू आर काइंड दैट इज़ व्हेन यू आर बीइंग बेनिफिशियल. अगर आप काइंड नहीं होते उस सिचुएशन के अंदर जहां आपने करेजियस होना है तो आपको रिजेंटमेंट्स हो जाएंगी उस पर्सन और सिचुएशन उन चीज़ों के साथ. अगर उस केस के अंदर कि आपने जहाँ पे करेजियस होना है वहाँ आप काइंड हो जाते हैं तो कल को आपकी रिबेलियन आना शुरू हो जाएगी उसके अगेंस्ट, क्योंकि टेरेनी आ जाएगी. राइट. सो हम लोगों को हर मोमेंट के अंदर वी हैव टू बी पोलाइट, करेजियस, ऑनेस्ट, सिंसियर. वी हैव टू बी माइंडफुल. वी नीड टू कीप दिस प्लेजेंट पर्सनैलिटी एज नेपोलियन हिल वाला भी हमने देखा, एंड दिस एंथुजियाज्म and this applied faith and believing in with accurate thinking, making your argument count. With that you arouse in the other an eager want to be part of what this thing that this greatness which you seem to be trying to get to. Now you need to become genuinely interested in other people. So our listening skills are very important. हम जो है ना मीनिंग कई दफ़ा लोगों का नहीं सुन रहे होते कि बात वो एक्चुअली क्या कर रहे हैं, सिर्फ वर्ड्स पे फंस जाते हैं. Always keep a pleasant smile. ये तो I think our even spiritual cultural values are a lot about smiling all the time. Remember that person's name is to that person the sweetest and the most important sound they've heard, because बच्चे होते हैं उनको हमेशा इनके नाम से ही बुलाते थे. So always give that respect to the person's identity. Encourage others to talk about themselves. हमारे तो स्पेशली सोसाइटी में ना आई स्टडी नॉलेज फैक्ट्री, क्योंकि एक्सप्रेशन लिटरली घुटन लोग बोलते नहीं. मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह इतना करम था, इतने लोग आके हर तरह के लोग आके यूज्ड टू हैव दिस फ्री स्पीच एंड डायलॉग एंड आई हैव रिकॉर्डिंग्स आई कैन शेयर विद यू. मैं ऐसे ऐसे टॉपिक्स और चीज़ों पे, एंड वंस यू रियलाइज वंस इट गेट्स टू द ह्यूमन एंड ह्यूमन थिंग, everybody has the similar challenges, issues, even regardless sometimes of their choices or situation. So
So now always talk in terms of the other person's interest. You know उसको क्या फ़ायदा है, आपको तो ठीक है. You know, always focus on what your customer is going to get. उसको क्या value मिलेगी, उसके क्या problems हैं. Talk in terms of the other person's interest. Make the other person feel important and sincerely. आप genuine interest लेंगे तो आप truth unveil करेंगे. लंबे आर्गुमेंट जब पता लग रहा है कि ठिसमिस होनी है, इसका एक्चुअली कोई वो फायदा नहीं होना, अवॉइड देम. You can take the high road. Show respect for the person's opinion and never say that you are wrong. Say that's very interesting. You could say something like that's very interesting information. In fact, I also know this. So maybe we need to figure out, you know, how these both things are making this change or effect which you're discussing. If you're wrong, admit it quickly and empathetically. It's fine because, you know, if you admit it, you have learned from failure there. If you keep this ego, you will get stuck in this perpetual उसी वाली चीज़ में उधर ही फंसे रहेंगे आप जब तक आप इस वाली ऑब्स्टेकल को ओवर या इस वाले वे को नहीं फॉलो करके नेक्स्ट स्टेप पे जाते उस चीज़ में आप. So it's fine. We're human. We're not God. It's a given. In fact, humanity these days, ये market researches भी हैं, human values and authenticity appeal more to people than this big Superman image. Everybody knows के फसाड है, सबको पता है ये मार्केटिंग आ रही है, झूठ बोल रहे हैं. Begin in a friendly way. Start with a question to which the other person will answer yes, because you want that agreement and the positive vibes to resonate. And let them talk. You will learn. You already know what is in your head. Right? Let the other person feel that the idea is theirs. It's okay. Right? Now this is, please remember, ये वाली चीज़ें जब आप once you read these in context with connecting with your personal success philosophy and Napoleon Hill, a lot of things will align. Try honestly to see things from the other person's point of view. You know, अभी हम next sessions के अंदर empathy mapping सीखेंगे, so hopefully that will also contribute to our personal skill, not just our business tool. You know, appealing to these bigger values and nobler motives, which everybody wants to be a part of, because you know, it's कुछ और नहीं तो feel good thing is always a plus. और लाइफ जो है ना, मतलब साउंड ट्रैक के साथ तो नहीं आती ना लगे हुए इधर उधर. तो अच्छी बात है कि हम थोड़े थिएट्रिकल और टोन और ड्रामेटाइज करें चीज़ों को. You know, it gets people to buy in. People love stories. So build a story. In fact, once we talk about marketing strategies, we'll talk about content and how stories are the big part of your brand and why people will stick with you. Why will they buy into you? What you need to do is call attention to people's mistakes indirectly, like I mentioned before. You know, maybe this is this. It will at least get them to also explore. If you know, because of any reason, maybe they've had some emotional trauma, उसकी वजह से वो अपनी thought और चीज़ के अंदर फंसे हुए हैं. If you do this, at least it will get them to question themselves. And only when we question ourselves do we go to the next step of learning the answer to that. And what it makes sense, you know, जिस तरह क्रिटिसिज्म किसी का करना होता है ना, कहते हैं कि उनके 5 अच्छी चीज़ें उनसे बात करो और फिर उनको वो वाली बात करो क्रिटिसिज्म में, right? So what you can also do is you can talk about your own mistakes indirectly, right? You can ask questions instead of giving direct orders. Do you think we can do this? You can, it lets them, and they will want to give to you. Everybody, humans have this natural thing that they want to give. It's a lot of times trauma और लाइफ और चीज़ों और इवेंट्स की वजह से हमें हमारे ये वेल्स और बैरियर्स आ जाते हैं हमारी ज़िंदगी में, जो हमें अपने आप से रोकते हैं. और अगले को जैसे आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको रिस्पेक्ट, इंटेग्रिटी और वो आपको वो रेपुटेशन दी जाएगी, तो गिव दैट टू द अदर पर्सन. एवरी पर्सन इज अ चैम्पियन विद इन देमसेल्व्स. दे आर ऑल फाइटिंग अगेंस्ट अ ह्यूज ओशन विच यू कैन नेवर रियलाइज व्हाट इज इट. So therefore we need to encourage these people. It's okay. It's okay to make their fault seem easy to correct, as long as it's a human thing to do and you are with them. And genuinely with them, not just कि हाँ मैं तुम्हारा पेटर हूँ बेटा, ये सीधा करो. And of course you can always highlight why you think this will benefit them. And this will make the person happy about, you know, why your suggestion, and tomorrow they will talk to you more about it. और जब हम ये बातें करते हैं तो रियली व्हाट वी टॉकिंग अबाउट मोर इज द इमोशनल सेल्फ हमारा, राइट? और ये इमोशनल इंटेलिजेंस पे वर्कशॉप नहीं है, बट आई वुड लाइक टू टच विद थोड़ा सा. अच्छा,
सो इमोशंस की जब हम बात करते हैं, वन डेफिनेशन ऑफ इमोशंस विच आई थिंक अगर मैं बहुत ही सिंपल उसको हलवा बना के करूँ, सो इमोशन क्या चीज़ है? सो लाइफ है, लाइफ के अंदर स्टिमुलेशन आ रहे हैं मेरे अंदर, मेरे ब्रेन में जाके हिट कर रहे हैं, आइज़ के थ्रू आते हैं, ब्रेन से हिट करके वापस उसका कोई रिएक्शन होता है और मैं वापस उसके एक्ट करता हूँ कोई। इमोशंस जो हैं ये हिट करना और रिएक्ट करना वाला जो इसके बीच में पार्ट है, इसको बोलते हैं इमोशंस। Even bacteria have emotions. When you put a stimulate, they have a certain reaction. These are called emotions. Now the experience of these feelings, right? ये feelings हैं, emotions जो वो hit कर रहा है और उसकी जो hit करके वापस आ रहा है उसको emotion कहते हैं। जो वो आपके अंदर trigger कर रहा है एक certain experience of life, वो feelings है। ये फीलिंग्स अगर टिपिकली हम डिवाइड करें तो प्लेजर या पेन की तरफ दो ब्रॉड कैटेगरीज जा सकती हैं। पर ऑब्वियसली लाइक ऑगस्टीन सेड, इफ नो वन आस्क्स मी आई नो व्हाट इज इट, इफ आई विश टू एक्सप्लेन इट्स नॉट, आई डोंट रियली नो व्हाट इज इट। सो प्लीज़ एक्सक्यूज एनी शॉर्ट कमिंग्स मेरी इमोशंस के कॉन्सेप्ट रिलेट करने में। दूसरा जो डायमेंशन ऑफ इमोशन है, एक तो ये कंसेप्चुअली फिलोसॉफिकल सॉर्ट ऑफ डिफिनेशन था इस एक्सपीरियंस फीलिंग्स का। दूसरी साइड से जब हम इमोशंस को समझते हैं टू अंडरस्टैंड द इफेक्ट कि किसी बीइंग पे क्या हुआ है, तो वो दो डायमेंशंस के अंदर हम मेजर कर सकते हैं, एक इंटेंसिटी एंड द अदर वन इज टाइम। सो किसी को बहुत कम इंटेंसिटी हिट कर रही हो ओवर अ लॉन्ग टाइम तो उसका जो वॉल्यूम एक सर्टन बन जाएगा। किसी को एकदम इंटेंसली हिट करता है, एक मोमेंट टाइम बहुत शॉर्ट है लेकिन इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा थी उसमें वो सारा गशअप कर गया। राइट, थिंक अबाउट अ पेल ऑफ वाटर, एकदम एज कम्पेयर टू आराम से ओवर टाइम करना। व्हाट हैपेंस अगर एक बकेट है और उसके अंदर एकदम आप सारा ओशन फेंक देते हैं, व्हाट विल हैपन? तो मेरे ख्याल से तो डिस्ट्रॉय हो जाएगी पूरा ओशन। यू कैन यू इमेजिन कितना प्रेशर होता है ओशन के अंदर, राइट? एज कम्पेयर टू हम एक एक कतरा करके डालते हैं तो वो आराम से भरेगी, एक साइड से ओवरफ्लो करना शुरू हो जाएगी। किसी ने यूज़ भी करना है तो अंदर करते रहेंगे यूज़। सो इमोशंस को हम काउंट करते हैं इंटेंसिटी और टाइम के ऊपर। एंड वंस वी नो दिस, वी रियलाइज व्हाट्स गोइंग ऑन विद अस, वी आर बेटर एट मैनेजिंग एंड डायरेक्टिंग बाय टेकिंग कंट्रोल ऑफ आवर माइंड एंड हैविंग दैट क्लैरिटी ऑफ विजन and definiteness of purpose. Then we can use these instead of being used by these. So like I said कि ये सारा कुछ obviously हमारे सर के अंदर हो रहा है, you know, हम उसके बारे में सोच रहे हैं और वो जैसे हम सोचते हैं वो इनफैक्ट उन और वो रिएक्शंस इमोशंस होते हैं। रिएक्शन की जो बात कर रहे हैं, फीलिंग्स और ज़्यादा होती हैं, रिएक्शन की इंटेंसिटी ओवर टाइम भी चेंज होती रहती है देयरफॉर। और ये सारा जो हम अपने आप से बातें कर रहे हैं इसको कहते हैं इंटरनल डायलॉग, राइट? एंड दिस इज मोस्टली हैपनिंग इन लैंग्वेज। जो सेवन बेसिक इमोशंस, 7 to 9 ये डिफरेंट फ्रेमवर्क्स में डिफरेंट बेसिक इमोशंस काउंट होते हैं। कुछ में 5 भी हैं, कुछ में 7 है, कुछ में 9 है। लेट्स से जो एक ब्रॉड 9 कैटेगरी ऑफ ब्रॉडर इमोशन है। सो ये वाली अगेन नॉट गेटिंग टू डीपली इनटू इट, जैसा आप ये वाली बात समझें। सो ये इमोशन जो आपका रिएक्शन है और फीलिंग्स हैं, ये लैंग्वेज के थ्रू भी ट्वीक हो रहा है क्योंकि वो वर्ड्स हैं। उन वर्ड्स का मीनिंग आपके साथ क्या है, उसके वो आप में जो रिएक्शन ट्रिगर करता है और फीलिंग्स इनकलकेट करता है, वो सारे कॉन्टेक्स्ट के साथ बातें आती हैं। यू मे फील अबॉमिनेशन, यू मे फील अ फीलिंग ऑफ ग्रीफ, एंगर, कंटेम्प्ट, फियर, happiness, surprise, shame, fault. Even these words we have defined, and now we relate sometimes कि अच्छा ये वाला word, ये वाली इस तरह मैं फील कर रहा हूँ तो ये word इसके लिए है। A lot of times, you know, I can't think of कि अच्छा I can't exactly point out what the word for this emotion or feeling is. It happens to me often. Sometimes there's a combination of different things. So you know, here the point is कि जो हम language, जो अपना internal dialogue जो अपने आप से बात कर रहे हैं ना, वो हमारे इमोशनल स्टेट के साथ क्या कर रहा है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। नाउ आई अंडरस्टैंड कि इज एवरीबॉडी विद मी अप टिल नाउ, कि ये थोड़ा डाइजेस्ट करके साथ चलने वाली बात है, स्टेप बाय स्टेप। ग्रेट, थैंक यू। सो अब बात आ जाती है लैंग्वेज की। देयरफॉर यू नो वी ट्वीक आवर लैंग्वेज एंड ऑल ऑफ दिस, जो पूरा ड्रामा ज़िंदगी का बना हुआ है मोर और लेस, जो क्लैरिटी ऑफ माइंड है, डेफिनेशन ऑफ पर्पस है,
आप लोग देखें, आप लोगों ने पेन के साथ एक लाइंस लिखी, डेफिनेशंस, कॉन्सेप्ट्स को डिफाइन किया, जो रियल लाइफ में आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं उसको कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं लफ्ज़ों के अंदर, राइट? एंड so the reason I got everybody to also use a pen and a paper instead of typing on the board is because Allah says that ये थोड़ी सी religious शायद बात हो, but I think it's a beautiful wise insight, and God teaches man what he knows not through the use of a pen. बहुत दफ़ा I would be writing an article and I would have in mind शुरू करते अच्छा ये मैंने लिखना है, halfway through वो ऐसी और बातें ख्याल आती हैं लिखते लिखते कि वो बिल्कुल ही आगे और कहानी आगे चली जाती है. So writing has this certain intellectual exponential discovery or manifesting of wisdom, जो writing के साथ आगे आगे wisdom uncover और unveil होना शुरू होता है. So writing is a great tool and it is also a bit language bound, और हमारा internal dialogue obviously बहुत ज़्यादा होता है as compared to हमारी writing वाला. But here so this is sort of like the internal वाली चीज़ ना, हमारे जो अंदर के सारा process और चीज़ें हो रही हैं. इसी के कॉन्टेक्स्ट की जो दूसरी हम साइड साथ साथ देख रहे हैं, लोगों वाली साइड, हाउ टू इन्फ्लुएंस फ्रेंड्स, उस कॉन्टेक्स्ट में इंटरनल कम्युनिकेशन का प्रिंसिपल है, ठीक है ना, कि जी आपकी जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है ना, जो भी बात मैं कम्युनिकेट करता हूँ आप लोगों से, ठीक है ना, दैट कैन बी ब्रोकन डाउन टू 3 थिंग्स. 1 is the body language, 2nd is a tone, and 3rd are the words. And according to the Mehrabian formula, हमारी जो बॉडी लैंग्वेज होती है दैट इज़ अबाउट 55% ऑफ द मैसेज विच वी आर कम्युनिकेटिंग टू अनदर. उसके बाद आती है टोन. टोन इज़ अबाउट 38%. वेयर एज द वर्ड्स विच वी यूज, जो इतना हम फंस जाते हैं, और आप हम वकीलों की बात करें तो उसमें तो लफ्ज़ों में ही पूरी कहानी है. दैट इज़ अबाउट 7%. द वर्ड्स, I mean, with the tone, the words are about 45%, but still body language is about 55%. In fact, अब जो नई साइंसेज हैं, इन द सेंस कि जी न्यूरो साइकोलॉजिकल साइंसेज जो हैं वो क्या करते हैं कि वो जी सोशल एक्सपेरिमेंट्स के अंदर, ब्रेन के अंदर वो सारे मतलब स्कैन वगैरह करते हुए, रियल टाइम के अंदर स्कैन करते हुए दे आर सेइंग कि अच्छा कौन सी सिचुएशन से कौन से इमोशनल रिस्पॉन्स ट्रिगर हुआ है, और उसके कौन से वाला पार्ट ऑफ द ब्रेन उसकी वजह से किस तरह लाइट अप कर रहा था. एंड सो वी हैव अ लॉट ऑफ सोशल एक्सपेरिमेंट्स इन द सेंस जिसको अमैलगमेट करके डेटा बहुत सारे नई चीज़ें निकली. वन ऑफ द थिंग्स इनसाइट्स व्हिच हैज कम इज कि सो वंस 2 people are looking into each other, if their eyes are interlocked, so one person जो सोच रहा होता है या फील कर रहे होते हैं, वही वाले केमिकल दूसरे पर्सन के विद इन द ब्रेन ट्रिगर होते हैं. आंखों में इशारा हो गया. So this is very important. So eye to eye, a man's word, a great handshake, the trust of word, these even relationships, all of these interpersonal things have a certain meaning. They trigger an emotional response. And of course, the biggest question when you're growing up and you're born is, who am I, right? क्या हो रहा है मेरे साथ? And there are always, हमारे 2 sides हो रही होती हैं कि जी एक साइड पे वो, it's typically showed इस तरह एक devil है और एक angel है दोनों पे, and there's a tussle going on, and then you're talking to yourself, telling yourself नहीं it's okay, या अपने आप को bash कर रहे हो, ये तूने फिर से क्या कर लिया है. So all of this, and you also have this tone and a certain body language. Have you ever caught yourself अपने आप से बात करते हुए, हाथ हिलाते हुए या सर हिलाते हुए या इधर उधर देखते हुए, right? So that's our internal dialogue. It's very important for us to get clarity of the mind by getting our mind अपने दिमाग अपने कंट्रोल में. ये करना है, करो, बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है एक्सप्लोरेशन की. So but either you are controlled by it or you control it. I think ideal is to control it. Let yourself go for that limited time freely so that you discover more things about yourself, and then use them in your real life. So interestingly, what a lot of times contradictory information भी आ रही होती है. हमारे ना कोई ना कोई ज़िंदगी के अंदर कहते हैं उसको टायरेंट कहते हैं, कोई हमारे सर पे होता है, या वो अब्बा होता है, वो कुछ भी कर रहे हो ना सर में अब्बा की आवाज़ गूंज रही होती है, तूने फिर ये कर दिए, या फिर अम्मा ने मारना है, अम्मा ने ये कहना है. So सेम टाइम हमारे अपने डिज़ायर्स भी हैं, ड्रीम्स भी हैं, अपने आप से भी इंटरनल डायलॉग में लगे हैं. So basically what our mind does with all of this language and internal dialogue in language, and to quite some extent जो feelings हैं उनको लेके, it creates these bridges to try to bridge a lot of contradictions.
ठीक है ना. It tries to make, the brain naturally tries to make rational self of what we perceive is going on हमारे इर्द गिर्द, राइट. ये हमारे साथ भी हो रहा है, हर इंसान के साथ हो रहा है, आपके कस्टमर के साथ भी हो रहा है, मेरे साथ भी हो रहा है, ठीक है ना. बहुत टाइम जब हम ये सोच रहे होते हैं अपने दिमाग में, तो हम इस तरह की बातें सोच रहे होते हैं, जी पहले ये हुआ था, उसने मेरे साथ ये कर दिया, फिर मैंने ये किया तो उसकी वजह से ये हुआ. क्या हम सोच रहे होते हैं यार मैं ये कर लूँगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा. यानी कि वी आर थिंकिंग आइदर ऑफ आवर पास्ट और वी थिंकिंग ऑफ फ्यूचर, राइट. डू यू गाइस एग्री विद दिस? अ लॉट ऑफ टाइम्स वी आर डूइंग दिस. Yes, This is true. Yes. absolutely. Yes. So, I mean, my question to even myself is, you know, when I'm thinking of the past, I'm thinking of the future. और अगर मतलब my being is this intelligent being जो exist करती है, conscious being इस वक्त टाइम और स्पेस में, तो मैं जब आगे पीछे सोच रहा हूँ तो मैं क्या इस वक्त यहाँ पे हूँ या फ्यूचर में हूँ या पास्ट में हूँ. जो फ्यूचर पीछे तो मेमोरीज हैं, और फ्यूचर जो अभी फैंटेसी है, किसको क्या पता फ्यूचर में क्या है. सो रियलिटी कहाँ गई इस सारी कहानी के अंदर, मैं जब ये इधर हूँ, राइट. अच्छा, अब इंटरेस्टिंग यहाँ पे, या इवन पास्ट हो या फ्यूचर हो, ये जो हमारा एक्सपीरियंस ऑफ टाइम एंड लाइफ है एक तरफ से दूसरी तरफ, इसमें अगर हम गिव कर रहे हैं ना, जैसे मैंने पहले बात की, सुने व्हाट वी आर थिंकिंग कि हम दूसरे के लिए क्या कर सकते हैं. हमने कहाँ पे मैंने करे, कोई किसी से कोई लूट रहा है तो वहाँ पे मैंने कैसे किसी को बचाया, आई पुट माई सेल्फ इन हार्म्स वे, यू नो, आई हैव गिवन, आई हैव डन द राइट करेजियस थिंग. तो इस सारी चीज़ों के अंदर व्हाट आई एम थिंकिंग इज कि अच्छा अगर मैं गिविंग कर रहा हूँ तो यू नो आई फील दिस ब्रेविटी, यू नो आई अकॉम्प्लिश, आई फील दिस हैप्पीनेस ऑफ हैविंग अचीव्ड एंड अकॉम्प्लिश गुड, आई फील गुड अबाउट माई सेल्फ. वेयर एज कोई किसी का पर्स लूट रहा था, मैं उसको कहा जो दफा, बाद में मेरे कहीं ना कहीं अंदर तो गिल्ट बैठेगा ना कि यार मैं ये कर सकता था. तो मैंने जहाँ पे गेट अपनी प्रोटेक्शन की बात की, आई वॉज फियरफुल, आई वॉज ग्रीडी, यू नो, आई स्टार्ट होस्टिंग दिस रिजेंटमेंट्स. And what this will do is, because it's, I'm saying by doing this, by doing, you know, fearful, what I'm telling myself by those actions is कि look, this is what you're capable of, साथ, ठीक है ना. You can't do this. So in the future if I'm thinking कि अच्छा मैं ये कर सकता हूँ, तो उसमें मुझे fears आएंगे कि नहीं मैं, मेरे अंदर से मुझे वो hesitation होंगी कि नहीं मैं ये कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, right. So giving intention or getting the intention, and then internal dialogue के अंदर, what a lot of us find ourselves in is in this depressive and anxious state. We're depressed about the past and we're anxious about the future, because हमारे अपने हम ये रियलाइज नहीं करते कि जी कई दफ़ा हमारे कर हम गेट रहे होती हैं एक्चुअली, लेकिन हम सोच रहे हैं हम गिव कर रहे हैं, ठीक है ना. और गिविंग और गेटिंग भी जो है ना, कम से कम दो काउंट्स होती हैं. एक तो कोई मटीरियल है ना, गेट में आपसे पैसे लेता हूँ, दूसरा एक और भी चीज़ है. व्हाट डू यू थिंक इज दैट? This is an intangible. This is about reputation. You know, this is the intangible. मुझे एक प्राइड मिलती है, ईगो बूस्ट होती है मेरी, ठीक है ना. So there are intangibles and intangibles here. So this जो अभी तक मैं ये गिव और गेट और ये tangible intangible future past की बात की, this is borrowed from sort of like a framework जो इसके साथ ये लाइन होता है, स्केटमास फ्रेमवर्क ऑफ लीडरशिप एंड इंटेंशन का फ्रेमवर्क है. सो एसेंशियली व्हाट इट डज इज इट सीज द वर्ल्ड और हमारा लाइफ का एक्सपीरियंस या हमारा एज अ सेल्फ, और पूरी दुनिया अदर है, राइट. और इसके अंदर या मेरी एक्सपेक्टेशन होती है कि आई विल गेट फ्रॉम द वर्ल्ड, आई गेट, मेरे एक मैं बता मैं किंग ऑफ द वर्ल्ड हूँ, जैसे लाइक माई नेचर के आई एम सपोज टू गेट, मुझे एक एंटाइटलमेंट है, राइट. एज कम्पेयर टू गिव इज वेयर आई एम humble and at your service, right? What can I do for you? And ये give to get जो life का birth to death का cycle है, this journey is actually all about getting from the get to the death. So you know, because when a child is born, वो एक प्योर गेट ग्रीड स्टेट में, उसकी बॉडी उसको चीख रही है, उसको चाहिए, रात को चाहिए, उसने पॉटी करनी है, उसने सोना है, जागना है, उसको नहीं फ़र्क पड़ता क्या, उसको बस चाहिए सब कुछ. एंड एज वी ग्रो अप, जो सेकेंड स्टेप ऑफ मेच्योरिटी होता है, दैट इज़ व्हेन दिस चाइल्ड रियलाइजेज, थोड़ा बड़ा होता है ना, वो समझ सकता है कि अच्छा नहीं मैं हर जगह जो है ये हाथ नहीं मार सकता, अम्मा अब्बा ये कि मैं करता हूँ तो अम्मा अब्बा ये मेरे साथ करते हैं, ये मुझे चाहिए तो मुझे ये करना पड़ता है. यहाँ पे वो उसकी थोड़ी निगोसिएशन शुरू होती है, ये सेकंड स्टेप ऑफ मेच्योरिटी होता है. यहाँ पे उसका फोकस होता है गेट का ही, लेकिन ये स्टार्ट्स अंडरस्टैंडिंग आई नीड टू गिव इन ऑर्डर टू गेट. फोकस उसका भी गेट पे है, लेकिन उसको पता है मैंने गिव करना है. एंड यू नो, ये मैं टिपिकल बात कर रहा हूँ, हर एक अपना लाइफ जर्नी होता है.
बट टिपिकली जब टीनेजर में आते हैं तो वहाँ पे जो है जब इंडिपेंडेंस थोड़ी ज़रा मदर पेरेंट्स के वो नेस्ट से आती है, वहाँ पे जाके चाइल्ड को थोड़ा सा ये जब उसको खुद से निगोशिएशन अपने ग्राउंड पे करना पड़ता है लोगों को, ठीक है ना, वो अपने आप को भी एक्सप्लोर करना शुरू होता है, तो वो नेचुरल कई दफ़ा उनकी ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स करती है। यहाँ पे भी उसको एक चॉइस मिलती है, वो या नेक्स्ट स्टेप पे चला जाता है या पिछले स्टेप पे चला जाता है। नेक्स्ट स्टेप पे वो जाएगा तो वो गिव टू गेट करना शुरू हो जाएगा, जहाँ पे इट्स यू नो यूनिवर्सिटी में एक बच्चा है, उसको वो कॉज के पीछे लग गया, उसने एनजीओ खोल ली, वो जाके फॉर डेवलपमेंट काम किया, वो एक्टिविस्ट बन गया। व्हाट ही इज डूइंग इज ट्राइंग टू गिव टू सोसाइटी एंड ही इज गेटिंग फ्रॉम सोसाइटी इन ऑर्डर टू गिव। वो नेक्स्ट स्टेप पे चला गया। एज़ कम्पेयर टू टीन एजेस के अंदर उसका एक्सपीरियंस ऐसा हुआ कि नेक्स्ट एज में उसने चॉइस ली गेट करने की। यार देखो मेरे साथ तो सब ने मुझे धोखा दिया मेरे स्कूल में, कोई मेरा साथ नहीं दिया किसी, अब बेटा मैं भी सारों के साथ ऐसे ही बिहेव करूँगा। वो सारों को जो है एक पेडेस्टल पे जजमेंट की बैंड वैगन पे चढ़ा देता है टिल द नेक्स्ट स्टेप। मेच्योर आगे जाके जिन लोगों को लेट्स से 30s 40s 50s के अंदर ये वाली चीज़ थोड़ा फिट करती है, दे गेट इनटू दिस, दे वांट टू बी यंग अगेन इन सेंस, ठीक है ना। वो पूरे वो बच्चे पाल लिए, उसने शादियाँ कर दी, सेटल हो गया, रिटायरमेंट पे आया। अब उसको समझिए मैंने किस चीज़ के लिए, मेरे तो ख्याल था पता नहीं मुझे कुछ मिल जाएगा, पूरी दुनिया मुझे कहती रही करते रहो, लेकिन अब मैंने अपनी ज़िंदगी जीनी है। वो दे विल गो एंड बाय सम हैवी बाइक और गो गेट समथिंग ऑफ वैल्यू, जाके कहीं ना कोई शो करेंगे, दे ट्राई टू गेट इन द आई ऑफ अदर्स टू मेक अ रेपुटेशन। सो हियर दे आर ऑल्सो दे फील अ लैक ऑफ यू नो व्हाट वी आर गेटिंग, राइट। अभी तक फॉलो कर रहे हैं मुझे? Yes, sir. बिल्कुल। और इवेंचुअली जो लाइफ को समझा जाता है वो ये है कि यू गेट इनटू दिस अनकंडीशनल बेनेवलेंट सेल्फ बने आप, यानी कि आप गिविंग पे हैं। और मैं फिर ये बात करूँ, गिविंग इज़ नॉट अबाउट लोगों को बस उठा के अपनी चीज़ें देना शुरू कर दो। गिविंग इज़ टू ओवरकम माई फियर्स एंड रिजेंटमेंट्स एंड डिज़ायर्स इन ऑर्डर टू डू द राइट थिंग इन द मोमेंट एज द यूनिवर्स इज आस्किंग मी टू डू दैट राइट थिंग इन द नाउ एंड द मोमेंट। सो आई गिव अप माई ग्रीड एंड माई सेल्फ, जो मेरे बेस डिज़ायर्स हैं, I give them up. I take the decision, the right decision, whether I need to be courageous or I need to be kind to anybody. Right? इसमें ये मतलब अगेन नहीं है, okay, ये हम दूसरों के साथ भी है, दूसरा अगर मुझे कोई काट रहा है, ठीक है ना, so it's important I stand up for that. Right? उसमें मैं ये नहीं कर रहा कि I'm standing up because I want to get this ego boost or something, because of the right thing to do. Because ये आपके साथ हो रहा है, वो replicate होगा सोसाइटी में. What you do is going to make the change in your world. फॉर श्योर, बेशक वो पूरी दुनिया चेंज न करे, लेकिन आपको मैं लिख के देने को तैयार हूँ कि आपके इर्द गिर्द के सर्कल्स में वही होगा जो आप करते हैं, कुछ और नहीं तो आप रिसीव करते हैं। दैट्स व्हाई साइकोलॉजी की इतनी बड़ी इंडस्ट्री मेरे ख्याल से एग्जिस्ट्स। बट एनीवे, सो कमिंग बैक हियर, राइट, सो व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द गिविंग एंड यू नो the right, doing the right thing, looking at these bigger principles, being the right person, power के साथ, so it brings us back to that definiteness of purpose. What do I intend to do with all of this myself? What is my vision? What does success mean to me? And how do I succeed in my thing, taking everybody along with myself? Right, so इसकी articulation के लिए, so for today, I think the last thing, उसके बाद we can open the floor for discussion. Now let's get into back to our directing all of these thoughts and energy and feelings and making our mark in the world. And the first thing we need to do is have that definiteness of purpose. And even for oneself, and even for a company or a business, startup or an organization, it is important to realize this definiteness of purpose and manifest it in terms of a vision and a mission statement. ठीक है ना, विजन और मिशन स्टेटमेंट तो फ़र्क चीज़ें होती हैं। विजन स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स द लॉन्ग रन ऑब्जेक्टिव आपकी कंपनी का, और यूजुअली इसका 5, 10, 15 साल इस तरह का लॉन्ग टर्म को बात करते हैं। फिर मिशन स्टेटमेंट इज़ मोर लाइक अ रोड मैप, हाउ यू आर गोइंग टू अकम्प्लिश व्हाट यू सेट आउट, व्हाट यू एनविजन्ड, राइट। आपकी विजन जो होगी वो बताएगी बिगर टर्म्स के अंदर हम क्या आई एम गोइंग टू ब्रिंग अ मिलियन पीपल आउट ऑफ पॉवर्टी, I'm going to help 5,000 businesses avoid closure, ठीक है ना। I mean anything that you achieve to seek your purpose in the world, making your impact, making your mark, and what you're going to do in order to do that, ठीक है ना। So for example, एड बाज़ार में अंडरस्टैंड कि जी हम बिलबोर्ड्स लगाते हैं, एडवर्टीजमेंट इस तरह होता है कि एनालिटिक्स होते हैं, तो लोगों को
पता होगा कि कहाँ पे सही जगह एडवर्टाइज करना है ताकि सही लोगों को वो वैल्यूज़ पहुँचा सकें जो उनका बिजनेस उनको पहुँचाना चाह रहा है। प्रोडक्ट बेहतर उनको मिल जाए, सस्ता मिल जाए, बेहतर मिल जाए, क्वालिटी बेहतर मिल जाए जहाँ उनकी नीड है। सो इससे सोसाइटी के अंदर बेहतरी आएगी। ठीक है ना, दिस माइट बी देयर मिशन। ठीक है ना, कि करना विजन वो है और मिशन हमारी। मैं एज एन एग्जाम्पल दिए अभी, ये विल डू दिस एज एन एक्सरसाइज एंड सो टू ब्रिंग ऑल ऑफ दिस विजन मिशन टुगेदर एंड हाउ वी आर गोइंग टू अबाउट दिस इज व्हाट वी कैरी आउट इज वैल्यूज, राइट। हियर ये वो वैल्यू प्रोपोजिशन वाली वो फ़ायदा नहीं है, बट ये वाला वो फ़ायदा वो है जो हर इंसान के फ़ायदे में है, राइट। सो दीज आर द वैल्यूज विच पुश आउट। और वैल्यूज़ जो है वो जनरली आर दोज प्रिंसिपल्स लाइफ के अंदर विच वी एम्प्लॉय फॉर ऑल आर बेटरमेंट, विच गिव अस द इंटेग्रिटी, द सेल्फ रिस्पेक्ट, विच आर ऑल्सो पार्ट ऑफ आर ब्रांड। बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट मार्केटिंग इन ब्रांड, तो वी विल अंडरस्टैंड कि ब्रांड जो है वो एक्सपीरियंस और परसेप्शन, इट्स अबाउट परसेप्शन एंड एक्सपीरियंस। सो अब यहाँ पे मैं ज़रा 1 मिनट आप लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ थिंक अबाउट ऑल ऑफ दिस, थिंक अबाउट दिस गिविंग थिंग, थिंक अबाउट दिस मेकिंग यू मार्क इन द वर्ल्ड, थिंक अबाउट टेकिंग पीपल टुगेदर, राइट। थिंक अबाउट हाउ वैल्यूज़ प्ले इनटू दिस, थिंक अबाउट हाउ गिविंग मे बी इन योर विजन, हाउ आर गिविंग और ग्रैटिट्यूड बेस्ड लाइफ गुड इन योर विजन और योर मिशन, हाउ डू दे कम टुगेदर। एंड जस्ट टू सॉर्ट ऑफ नॉट जस्ट टू हाईलाइट कि ये कोई इतनी फ्लिमजी फ्लावरी बातें सिर्फ नहीं है, ठीक है ना। लेट्स लुक एट सम ऑफ द बिगर companies, right? Or then they have like millions of dollars of branding and marketing budget and whatnot, and they're not the people, you know, they're the big people, right? They're the people जो कि सब बंदे सोचते हैं कि हम इनका पार्ट होना चाहते हैं, right? What do they say about what are they about? So Nike says to bring inspiration and innovation to every athlete in the world. Is this for Nike gonna be? Is this like? Does it sound like कि जी Nike खुद कुछ get कर रहा है या give कर रहा है? What do you guys think? By being the destination of customers to save money, no matter how they want to shop, is Walmart taking money or giving value? Giving value, taking value. मतलब किस चीज़ का ज़्यादा? They're obviously giving value because in turn they're giving them an option to get cheaper products. बिल्कुल कि लोगों को जो है वो चीपर प्रोडक्ट मिलेंगे, जैसे मर्जी वो शॉपिंग करना चाहें, उनको पावर भी दे रहे हैं, वैल्यू पैसे भी उनको बचा के दे रहे हैं। नाइकी एवरी एथलीट इन द वर्ल्ड के लिए को इनोवेशन और इंस्पिरेशन लेके आ रहा है उसके लिए। वीज़ा इज टू द बेस्ट वे टू पे एंड बी पेड फॉर एवरीवन। इट डज Southwest says to become the world's most loved, most flown and most profitable airline. इसका क्या ख्याल है आपको? I think it's more like greedy, but it's also giving a lot of value to them. I think it's pretty greedy in the sense that they want to become the most flown and most profitable, right? As compared to, of course, what they need to do this is get people to love them. Authenticity के बगैर प्यार होता है, गिविंग के बगैर प्यार होता है। मोस्ट फ्लोन नहीं होगा अगर लव नहीं होगा। कोई वैल्यू देंगे लोगों को तो मोस्ट फ्लोन होगा ना। मोस्ट प्रॉफिटेबल भी अपने शेयर होल्डर के लिए लिखते हैं ज़्यादातर लोग। पाकिस्तान में भी ना आप ज़्यादातर कंपनी उठा के विजन स्टेटमेंट देखो तो इस तरह की होती हैं, टू बिकम द नंबर 1 एक्सपोर्टर इन अपैरल इन पाकिस्तान, यू नो। सो वो क्या करेंगे, ये अपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को भगा रहे होंगे डिक्टेटरशिप की तरह। इंस्पिरेशन इनमें जो है वो उतनी लेवल की नहीं होती। वेयर एज नाइकी का वो उसको पता है यार मैं एथलीट्स को एनेबल कर रहा हूँ। लोग इतनी एथलीट्स की वीडियोस देखो, कितने चैलेंजिंग चैंपियन ह्यूमन अचीवमेंट के काम करते हैं, उनको मैं पावर दूंगा। आई एम पार्ट ऑफ दैट हैपनिंग। Disney said to be the world's leading producer and provider of entertainment information. Right? Whereas Google has to provide access to the world's information in one click. Tesla said to create the most compelling electric car company of the 21st century, to be the best, quickest service experience brand. Starbucks to establish Starbucks as the premier
purveyor of finest coffee in the world. So this is how brands are talking about themselves. And you will see how giving philosophy has this more empowering feeling when you read it. Conversely, even if they don't have, if you can't straight off see the giving philosophy, once you go meditate deeply, they are always talking about what is important for their customers and giving customer value. So now what I would like for us to is to come up with a vision and a mission statement for our businesses. Thank you, Vikas. Thank you. I hope so. So now what I would like us to do is try to pose a vision statement हमारे business के लिए, ठीक है ना? So vision statement like which अभी हमने बात की, vision statement is the big long term objective, right? हम क्या करेंगे लोगों के? अच्छा, इसका एक method है and I would like everybody to follow that method now. So if you have your pen and paper in your hand, तो मैं आपको क्वेश्चंस करता हूँ, ठीक है ना? और आपने, मैं क्वेश्चंस करूँगा और आपने सोचना है जैसे आपके लिए ये क्वेश्चन हो रहा है. What I will do is I will request either AQ or Adil, are you here? I will request Adil, ठीक है ना, to help me with this exercise just so that थोड़ा ज़रा आप लोगों को आइडिया बेहतर हो जाए कि क्या कर रहे हैं. So what I'm going to do is मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा, आपने अपने लिए वो पेपर पे थोड़ा बेसिक सा करके लिखना है, ठीक है ना? मुझे भी आप बता सकते हो, लेकिन मैं एग्जांपल एक टाइम पे एक ले सकता हूँ. आई विल डू दिस इंशाल्लाह इन द इंडिविजुअल सेशंस. विल वर्क ऑन द विजन एंड मिशन स्टेटमेंट वंस वी डू द वन ऑन वंस नेक्स्ट वन इंशाल्लाह. बट यहाँ पे आपको थोड़ा ज़रा इधर इसलिए लिख लो तो आपके माइंड में हो चीज़ें. सो इसमें करते क्या है कि आई विल आस्क 6 क्वेश्चंस, ठीक है ना? और जब पूरी ऑर्गेनाइजेशन का बनाना होता है ना, मैं आप लोगों को मैसेज भी थोड़ा ज़रा चलो वैसे बता देता हूँ. तो ऑर्गेनाइजेशन के सारे लोगों को, जैनिटर को भी, हेड को भी, CEO, डायरेक्टर, इवन कई स्टेक होल्डर भी अगर लगते हैं उनको भी लेके ना इकट्ठे करते हैं. उनको खैर डिवाइड करके एक पूरा फार्मूला रन करते हैं, लेकिन उसका क्रक्स जो है ना वो मैं बेसिकली आदिल को एज वन एग्जांपल लेके करता हूँ, ठीक है ना? आदिल इज जस्ट टू रिमाइंड एवरीबडी, आदिल एंड AQ खान आर विद एड बाज़ार. सो एड बाज़ार का ही हम कर लेंगे. सो हु इज गोना डू इट, आदिल या AQ? हु इज अप फॉर इट? Yeah, I'm here. चलें, ओके, आदिल के साथ, ठीक है ना? सो व्हाट वी डू इज वी आस्क 6 क्वेश्चंस, ठीक है ना? पहला क्वेश्चन जो है, तो मैं जो क्वेश्चन करूँगा ना, सब अपने अपने लिए, अपने पर्सनली अपने लिए ही अब आपने आंसर लिखना है इसका पेपर पे. आदिल विल से इट आउट लाउड एग्जांपल देने के लिए. बट आदिल मैं क्वेश्चन करूँगा, लेट्स जस्ट गिव एवरीबडी अ मिनट और उसके बाद फिर आप बोलना, ठीक है ना? मेरा पहला क्वेश्चन जो वो था, बल्कि वो आपने लिखा होगा डेली टास्क वाला, ठीक है ना? व्हाट एग्जैक्टली इज इट दैट यू डू? प्रैक्टिकली करते क्या हैं, टास्क क्या करते हैं रेगुलर बेसिस पे, ठीक है ना? आदिल इफ यू वुड रीड देम आउट, देन सबने लिखा हुआ होना चाहिए. बट लेट्स गिव एवरीबडी 30 सेकंड्स अगर किसी ने देर से आए कि, ठीक है ना? सो जस्ट कि जी आप डेली पे टास्क आप क्या करते हो. सो फॉर एग्जांपल अगर कोई जो है एक लाइन वर्कर है क्लॉक्स का, ठीक है ना? तो वो क्लॉक की लाइन पे खड़ा हुआ वो एक वो बनाता है, वन ऑफ द वो जो गोल से नहीं होते उसको क्या कहते हैं, कॉक्स कहते हैं. कॉक बनाता है जो जाके घड़ी के अंदर फिट होता है फर्स्ट को. वो कहता है कि जी आई put the material in the stencil in the mold and I make sure कि the cog comes out perfect. This is exactly what he does. मतलब action oriented वो ये task करता है, ठीक है? What exactly is the key thing that you do, Adil? The key thing I do is I develop a product feature daily basis. ठीक, featuring करते हैं product. So let's take that as an example, ठीक है ना? So imagine कि एड बाज़ार की बहुत बड़ी टीम है, उसमें एक बंदा ये है आदिल डज इज फीचरिंग करता है सिर्फ, और बाकी सब और बहुत कुछ करते हैं. बट ऐसे कि आदिल डज फीचरिंग, ठीक है ना? दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. अब सबने आंसर लिख लिया तो मुझे अगर किसी को चाहिए और टाइम तो लेट मी नो, अदरवाइज आई अज्यूम कि सबने लिख लिया. चलिए, अच्छा आदिल, सो माय सेकंड क्वेश्चन टू यू, इसके ये जो आप करते हो फीचरिंग करते हो, इफ़ यू डू दिस वेल इन द चेन ऑफ यू नो लाइफ डोमिनो है, राइट? आप एक चीज़ करते हो तो वो दूसरी चीज़ को हिट करती है, वो तीसरी चीज़ को हिट करती है, चौथी हिट को चीज़ करती है, ठीक है? सो आप अगर अच्छी फीचरिंग करोगे एड बाज़ार की तो क्या होगा? Should I give some time? हाँ, लेट्स गिव अ बिट. सो आप अपने केस में देखें कि जो आपने पहला डेली टास्क लिखा है कि जी मैं ये करता हूँ, इफ़ यू डू दैट वेल, व्हाट विल हैपन इन द एक प्रोडक्शन
वो भी है ना चेन, ठीक है ना, या फिर वो क्लॉकवर्क मॉडल है या वो लीनियर मॉडल है, जो भी है उसमें जो आप करते हैं वो किस चीज़ को इफेक्ट करती है बड़ी की होके। सही है। फॉर एग्जांपल जो क्लॉक वाला है वो अगर अच्छी घड़ी बनाता है तो उसको पता है वो जो टाइमर पे जाके वो जो उसका बोल्ट वो बना रहा है कॉक, वो उसका पीस ऑफ इट वो क्लॉक में लगेगा तो वो क्लॉक जो है उतना प्रिसाइज टाइम दिखाएगी जितना वो सही होगा। ठीक है ना। सो इस तरह आदित्य, सो व्हाट डू यू डू, आई मीन यू डू इफ़ यू डू फीचरिंग वेल, या अच्छा आप फीचरिंग करते हो तो क्या होता है, या अच्छी करते हो तो क्या होता है, या बुरी करते हो तो क्या होता है? Basically, when I develop a good feature, it solves a problem of the customer. But if I do my job badly or poorly, then it creates more problems for the customer. ठीक है, चलो अगर ये अच्छा बनाएगा, ठीक है ना, फीचर कोई, तो वो कस्टमर को फ़ायदा देगा, ठीक है, या स्पेसिफिक हो जाते हैं, ठीक है ना, वो क्या फ़ायदा देगा, वो अपनी बुकिंग फॉर एग्जांपल या वो अपनी ऑप्शंस अपनी ज़्यादा आराम से देख सकेगा। ठीक है ना। आदिल ने फ़र्ज़ करो एक मैप इंट्रोड्यूस कर दिया कि जी जियो टैग मैप भी है, ठीक है ना, एड बाज़ार में, उसके अंदर अब वो ईज़ ऑफ यूज़ आ गई उसके पास, कस्टमर के पास, वो ग्राफिकली इंटरएक्टिवली देख सकते हैं कहाँ से कोड बोर्ड। सो इफ़ इट क्रिएट्स अ वैल्यू विच क्रिएट्स ईज़ फॉर द कस्टमर, तो क्या होगा? वो बेसिकली अपनी मतलब जियो मैप की एग्जाम्पल है तो वो अपनी टारगेट ऑडियंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, टारगेट एरिया को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। So he can find the right people with whom to do this value exchange. Yeah. So basically, if he wants to advertise some place where there is a high volume of buying for some certain product, or in front of a big grocery shop, Who want or need that? Who want or need that? That is why they will buy it. Obviously. Yeah. Absolutely. So yeah, he could select a location that where is the big grocery store, let's say Alphabet is located, and which billboard is nearest to him. He could select. बिल्कुल ठीक है। सो आदिल ने फीचर अच्छी बनाई जिससे ईज़ ऑफ यूज़ आई, जिससे कस्टमर को और एम्पावरमेंट मिली अपने वैल्यूज़ एक्सचेंज के लिए, इकोनॉमिक वैल्यू एक्सचेंज के लिए, ठीक है ना। और मतलब जो प्रोडक्ट वो जो देखो कोई भी प्रोडक्ट होता है वो कल्चर पे भी तो इफेक्ट डाल रहा है ना, लोगों की ईज़ ऑफ यूज़ क्रिएट कर रहा है, हैबिट चेंज कर रहा है, कल्चरल इफेक्ट भी देयरफॉर आता है। ठीक है, ग्रेट। सो ओके, सो नाउ वी आर एट द आई गेस थर्ड क्वेश्चन। आदिल मेक फीचर्स वेल, ईज़ होती है कस्टमर के लिए, कस्टमर्स बुकिंग ज़्यादा कर सकेगा, अपने कस्टमर्स बेहतर ढूंढ सकेगा लेट्स से, ठीक है ना, और लोगों को भी प्रोडक्ट्स अच्छे मिलेंगे। जब कस्टमर अच्छे सही लोगों को ढूंढ सकेगा और प्रोडक्ट भी सही लोग भी सही प्रोडक्ट ढूंढ सकेंगे तो क्या होगा? ये फोर्थ क्वेश्चन है। What will this affect? What change or impact will this create in society or the world? It will create. एक सेकंड, let's give everybody a minute. मिनट दे देते, नहीं थैंक यू, बल्कि मैंने नहीं बोला, माइंड फॉल्ट, 1 मिनट दे देते हैं क्योंकि रन ऑन हो गया। तो आप सब ये सोच सकते हो कि जी ये मैं करता हूँ उससे ये होगा, उससे ये होता है, क्या होता है, और बहुत कुछ होता होगा, हो सकता है। आप मेन चीज़ पिक करें अपने हिसाब से, ठीक है ना, जो इम्पैक्ट बिगर सोशल लेवल्स पे जा रही है बात, या ह्यूमन टू ह्यूमन वैल्यू होती है। आपने एक ज़िंदगी बचाई है जैसे सबको बचाया है, आपने एक अच्छाई की है जैसे सबके साथ की है। ठीक है। सो अब हम फोर्थ रखते हैं, ठीक है। हम पहुंचे थे कि जी फीचर अच्छी होगी तो कस्टमर को ईज़ ऑफ यूज़ होगी, कस्टमर बेस भी बढ़ेगा, ये होगा तो और ज़्यादा लोगों को उनकी वैल्यूज़ एक्सचेंज और रिच हो जाएंगी। इससे क्या होगा अगर ये होता है तो? इससे बेसिकली जनरल प्रॉस्पेरिटी जो है वो और वेल्थ जो है वो जो ब्रांड एडवर्टाइज कर रहा है, जो बेसिकली सेलर है, उसके लिए मोर वेल्थ की अपॉर्चुनिटीज और राइट वेल्थ की अपॉर्चुनिटीज। तो एफिशिएंसीज जो हैं वो इकोनॉमी में और सोसाइटी जो सोशियो इकोनॉमिक साइड है उसके अंदर एफिशिएंसी ज़्यादा आएगी, ये मैं समझूँ आपने कहा। हाँ, जो वो वैल्यूज सोशियो इकोनॉमी है ना, सोशियो इकोनॉमी होता है जो सोसाइटी जो है वो अपनी प्रोडक्ट को मार्केट भी कर रहा है और उस एफिशिएंट मार्केटिंग के बदले में वो बिल्कुल, ये मैं वही आपके आई एम ट्राइंग टू गेट बिहाइंड व्हाट यू आर सेइंग।
सोसाइटी एंड इकोनॉमी जब इकट्ठी आती है, यानी लोग जिस चीज़ के लिए पे भी कर रहे हैं और वो सोसाइटी पे इम्पैक्ट या डेवलपमेंट सोसाइटी की क्या कर रहे हैं, तो उन चीज़ों को हम सोशियो इकोनॉमिक्स बोल देते हैं, ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक। तो सोशियो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, अगर मैं बिल्कुल ब्रॉड बेसिक वर्ड्स इसमें खींचना चाहूँ ना, ये होगी। सो ये चौथा लेवल है, ठीक है, यानी लोगों को सही वैल्यूज़ मिलेंगी, उनको एग्जैक्ट प्रोडक्ट्स मिलेंगे, वेस्टेजेस कम होंगे, सो इकोनॉमिक एनहांसमेंट होगी। ये मुझे समझ आइए आप कह रहे हो। अच्छा, ये होगा तो क्या होगा, ये हम 5वें क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। और फर्ज करो आप पाकिस्तान में करोगे ना, ये कह रहे हो, जी जी ठीक है ना, तो लेट्स से ये कि, और हम अभी लॉन्ग टर्म विजन जो है 5 to 10 ईयर्स की बात करते हैं, इस कॉन्टेक्स्ट में ये बात, ठीक है, हम रियलिस्टिक बात कर रहे हैं, हम ड्रीमी बातें नहीं कर रहे हैं। नहीं, हाँ ये ड्रीम है कि ये हो जाए, लेकिन मैं ये बात करूँ प्रैक्टिकली हम देख रहे हैं कि इतने स्केल पे इतना करेंगे ये चीज़, तो ये इफेक्ट आएगा उसका। हम प्लानिंग कर रहे हैं, ड्रीमिंग नहीं कर रहे, ठीक है। सो हियर अब इकोनॉमिक वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी सोसाइटी के अंदर वेस्टेजेस भी कम हो रहे हैं, इससे ओवरऑल, और ये पाकिस्तान लेट्स से 5-10 साल के अंदर एड बाज़ार पाकिस्तान में सिर्फ है, और डू यू सी लेट्स से मिडल ईस्ट की पॉसिबिलिटी है, क्या स्केल इमेजिन करते हो, बेसिकली मल्टीनेशनल रीजनल लेवल या ग्लोबल लेवल? ग्लोबल ग्लोबल लेवल पे, ठीक है, साउथ एशियन मार्केट्स एंड मिडल ईस्ट, दिस इज मोर रीजनल, ठीक है ना। सो रीजनल, अब ये अगर होता है कि ये इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी और वेल्थ ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है इन रीजनल लेवल के ऊपर, फिर डेवलपमेंट आती है, तो लोगों की ये लोग वेल्दी भी हो जाते हैं, और एवरीबडी विल बेनिफिट, आई सपोज, राइट। तो लोग वेल्दी भी होते हैं, प्रॉस्पेरिटी भी ज़्यादा हो रही है, वेस्टेजेस भी कम हो रहे हैं, लोगों को अपने मतलब की चीज़ें भी मिल रही हैं, लोग बेच भी सक रहे हैं एग्जैक्ट अपने उन लोगों को जिनको वो चीज़ें चाहिए, ठीक है। ये होना शुरू हो गया 5वें स्टेप पे। अब ये अगर लोगों की अब आप लाइफ में रिचनेस ला रहे हो और वेल्थ ला रहे हो, तो वो क्या करेंगे इस रिचनेस और वेल्थ और राइट प्रोडक्ट एट द राइट टाइम के साथ, क्या करेंगे, क्या होगा इससे जो मेरे 3 चीज़ें होगी। एक ये नया वेल्थ का नेटवर्क क्रिएट होगा, जो एक मतलब राइट पीपल कनेक्टिंग विद राइट, जो ये हो गया नहीं ये हो गया, पिछले बार छोड़ दो, ये हो गया, ये 5 पे है। अच्छा, अब 6th पे जो है ना हम आते हैं, ठीक है ना, ये 5th है, 6th वाले पे हम। अच्छा, आप लोग कौन से नंबर पे हो, 4th पे हो, 5th पे हो, कितने क्वेश्चन स्टेप्स पहुंचे हो बाकी सारे? 5th है, ग्रेट। अब आखिरी क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। आखिरी क्वेश्चन में अब क्योंकि थोड़ा आर्ट का भी काम है एंड हाउ द थिंग गोज, तो आखिरी पे देखो, अब हम इंडिविजुअल की बात करते हैं, कर सकते हैं एक्सप्लोर करने के लिए पूरे रीजन जो है साउथ ईस्ट एशिया और मिडिल ईस्ट का, इसके अंदर लोगों के वेस्टेजेस कम हो गए, वो उनकी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आ गई, उसके पास स्पेंडेबल इनकम ज़्यादा आ गई, उसके पास टाइम भी ज़्यादा आ गया, उसको सही चीज़ें भी मिल रही हैं। अब वो लाइफ में क्या कर सकता है इसको सारे करने के बाद? अगर मैं एज एन इंडिविजुअल सोचूं तो क्या कर सकेगा वो अपना नया विजन जो है, या नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो है, वो उसको कर सकता है, और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ वो इनोवेट कर सकता है। सो दिस इज़ योर 6th थिंग, ठीक है ना। मोर अपॉर्चुनिटीज़, मोर इनोवेटिंग, मोर अपॉर्चुनिटीज़ इन बिजनेसेस, ये आपका 6th बन सकता है लाइन। सो द इम्पैक्ट, और रादर यूर हेल्पिंग पीपल, ये हमने बात की ना कि वो क्या कर सकेगा, ठीक है ना। सो यूर हेल्पिंग पीपल इनोवेट मोर अपॉर्चुनिटीज़ इन बिजनेसेस, और द राइट अपॉर्चुनिटीज़ इन बिजनेसेस, ठीक है। ये अब 6 स्टेटमेंट्स आ गई, 6 लेवल्स हो गए आपके इम्पैक्ट के। जो आप छोटा सा काम करते हो उसका इम्पैक्ट क्या होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन सारे जो आपने वर्ड्स लिखे हुए हैं ना, इनके अंदर से पावर वर्ड्स ढूंढें, आइडेंटिफाई सम पावर वर्ड्स, एंड देन उन पावर वर्ड्स को जो है ना, उनके मिश मैश करके, प्रीफिक्स सफिक्स तोड़ जोड़ के आपस में लगा के ना, सो कम अप विद 5 ऑप्शंस, ठीक है, फॉर अ विजन स्टेटमेंट, ठीक है। सो फॉर एड बाज़ार एम्पावरिंग पीपल टू innovate new businesses and opportunities, ठीक है। सो थिंक अबाउट दिस। ये वाला अभी जो है पेंडिंग जाएगा, क्योंकि इसमें पावर वर्ड्स आपने ढूंढने हैं, आपने इन सारों को इकट्ठे लगाना है, डिफरेंट वर्ड्स को लगा के देखो। मैं एक दो एग्जांपल्स दे देता हूँ जो प्रैक्टिकली दुनिया में चल रही हैं इस वाले फ्रेमवर्क पे विजन स्टेटमेंट बनाने की। आवाज़ आ रही है मेरी?
एकदम मेरा वाइट नॉइज ड्राई आउट हो गया। अच्छा ओके, सो एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। सो ये वाली जो क्लॉक वर्क वाली मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कि वो डायल बनाता है, जो डायल जाके एक टाइमर में लगता है, टाइमर जो है वो जाके जो है एक एक्सप्लोसिव डायनामाइट में लगता है, डायनामाइट जाके वो एक माइन में लगता है, माइन ये जो है वो उसकी एक्सप्लोजन होती है तो उसके अंदर से फिर माइनिंग करते हैं और मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करते हैं जो बहुत सारे यूजेस में आते हैं। ठीक है, ये केस स्टडी, ये मतलब ये एग्जांपल है अफ्रीकन एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड की। अफ्रीकन एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड खुद जो है वो सिर्फ टाइमर बनाता है, वो डायनामाइट नहीं बनाता, ना ही माइनिंग करता है। लेकिन जो लाइन वर्कर है अफ्रीकन एक्सप्लोसिव्स का, वो ये मानता है कि वो अगर डायल अच्छा बनाएगा तो डेटिनेशन सही टाइम पे होगी तो वेल्थ अनलॉक होगी। सो उनका जो विजन स्टेटमेंट है, इट रीड्स अनलीशिंग द वेल्थ ऑफ अफ्रीका। सही है, अफ्रीकन एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड साउथ अफ्रीका की कंपनी। इसी तरह टेलेनॉर के अंदर जिस वक्त ये आई थिंक डिजिटल सर्विस और ये मोबाइल बैंकिंग और इस तरह की चीज़ें इंट्रोड्यूस कर रहे थे, आई थिंक दैट वाज द मोमेंट, इसी याद नहीं। उस वक्त इसी सारे मॉडल के थ्रू सब लोगों को इकट्ठे किया, उनसे पूछा आप क्या क्या करते हैं, कंट्रीब्यूशन के लेवल्स ऊपर लेके गए। फाइनल जिस वक्त इम्पैक्ट के ये विजन स्टेटमेंट बनवाया तो वो बना करो मुमकिन, बिकॉज व्हाट दे सॉ देमसेल्व्स व्हाट दे वर गोइंग टू एनेबल these people in remote areas to do anything, to meet, to virtually connect with people, to order things, to learn about new things, to interact, to find out about the world. So you know they were making anything happen. So वो उन्होंने विजन स्टेटमेंट जो उनका स्लोगन भी बन गया। So आपका विजन स्टेटमेंट स्लोगन अगर बनता है तो ब्रांडिंग के हिसाब से आप बाइंस भी दोनों मजे की खींच सकते हैं। ठीक है ना, बात तो इवेंचुअली जाके बिजनेस की और बिजनेस के अंदर कॉज की है, और कॉज के अंदर मोटिवेशन होना ज़रूरी है आपकी और मेरी और सबकी, ऑथेंटिकली। इसी तरह जब विजन जो है ना वो एक बिगर इम्पैक्ट वाली चीज़ लिखती है कि जी हम ये कर रहे हैं दुनिया में। ठीक है ना, कि नाइकी जो है वो सब एथलीट्स को एम्पावर कर रहा है इनोवेशन के साथ। ठीक है ना, बिगर विजन और ये लाइफ लॉन्ग भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं 5-10 साल का ही फ्रेमवर्क हो, बट इट्स द बिगर थिंग एंड हाउ यू आर गोइंग टू डू इट। सो हाउ डज नाइकी डू इट? बाय मेकिंग दिस न्यू कटिंग एज स्पोर्ट्स वेयर, right? That's how they're bringing innovation. It's not like they're bringing all innovation to the athlete, they're doing their bit. Your business is going to do your bit. Your personal contribution is going to do that bit for the business, which is as important as everything else in the world. So mission statement के अंदर जिस वक्त हम like more of a road map, ठीक है ना। So एड बाज़ार की केस ले लेते हैं। अगर एड बाज़ार इस तरह का बनाता है कि जी क्या बनता है आदिल, कोई 2-4 पावर वर्ड्स इकट्ठे करके पीपल, और वो कुछ आया माइंड में ऑफ द टॉप, ब्लॉक नहीं है। इट्स पावर वर्ड्स जो हमारे लिए हैं वो है अपॉर्चुनिटीज और प्रॉस्पेरिटी एंड ब्रिजिंग वैल्यूज, नेटवर्किंग। हाँ, तो ब्रिजिंग अपॉर्चुनिटी एंड प्रॉस्पेरिटी फॉर एग्जांपल, ब्रिजिंग अपॉर्चुनिटी फॉर एग्जांपल, ठीक है ना। ये एक बड़ी कंट्रीब्यूशन और चीज़ है जो आप कर रहे हो, अपॉर्चुनिटी और पीपल भी हो सकते हो, बट ये आप ब्रिजिंग अपॉर्चुनिटी एंड प्रॉस्पेरिटी जब लाते हैं, हाउ आर यू डूइंग इट? वी आर गोइंग टू हैव अ डिजिटल मार्केट प्लेस फॉर एडवर्टाइजमेंट्स वेयर पीपल विल नो वेयर एंड व्हेन टू एडवर्टाइज टू गिव द बेस्ट वैल्यू टू द कस्टमर्स। ठीक है ना, हाउ आ गया कि ये रोड मैप हमारा क्या, ये हम करेंगे तो ये प्रॉस्पेरिटी और अपॉर्चुनिटी ब्रिज हो जाएगी। ठीक है, अब मिशन स्टेटमेंट जब आ गई तो उससे गोल्स निकालेंगे कि जी हमारे गोल क्या, हम कितने अरसे में क्या कर लेंगे तो ये मिशन पूरा हो जाएगा। इट्स लाइक ब्रेकिंग डाउन द थिंग। ठीक है ना, और हम छोटे पार्ट्स को वर्कआउट करें तो बड़ा पार्ट ऑटोमेटिकली हम वी आर गेटिंग टू आवर बिग पार्ट। ठीक है, तो जो आप लोगों की गोल सेटिंग हुई है वो भी इस वाली बात से अलाइंड होगी, क्योंकि आप लोग वो वाले गोल्स अचीव करते हो तो वो आपकी मिशन स्टेटमेंट पूरी कर रही होगी, मिशन स्टेटमेंट आपकी विजन स्टेटमेंट पूरी कर रही होगी, विजन स्टेटमेंट आपका दिल की प्यास भरेगी। क्योंकि लाइफ इतनी सी है, रिस्क खाना सबको मिल जाते भाई, कुछ चेंज करो दुनिया के अंदर, आपके पास पावर है, आपको अल्लाह ने इतना यूनिक एक अमेजिंग बीइंग पैदा किया है, आप अपने अंदर देखना शुरू करो, ख़त्म ही नहीं होगे। बट मसला बात ये है लॉस्ट ना हो जाना उसमें, ये इसीलिए अपनी क्लैरिटी ऑफ माइंड, डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस, और ये ज़रूरी है कि यू नो रियलिस्टिक रहा जाए, स्मार्ट गोल्स रखे जाए जो हमने बात की है, सिंपल, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइमली, और वक्त उतना ही है आपका भी मेरा भी।
और फ़र्क है, लेकिन पॉइंट ये है कि वक्त तो वही है ना, लिमिटेड है. I think with that, and values, and I mean, you're welcome to explore ethics and values frameworks. बहुत important हैं, because अब तो पर्सनल ब्रांड्स की भी जब हम बात करते हैं तो वैल्यूज़ आपका ब्रांड क्या डिपेक्ट कर रहा है, उससे आप उस तरह के लोगों के साथ रेजोनेट करेंगे, उस तरह के इन्फ्लुएंसर्स आपको साथ अटैच करने होंगे जो आपसे रेजोनेट करते हो, आपकी वैल्यूज से रेजोनेट करते हैं. ये हम बात करेंगे बाद में मार्केटिंग के अंदर चीज़ें, ठीक है. बट दिस इज़ ऑल बिग पार्ट ऑफ हाउ वी आर गोइंग टू कम्युनिकेट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ आवर बिजनेस या इवन वोकेशन, या हमारी अपनी लाइफ का मीनिंग और पर्पस क्या है इसमें. With that, I would like, मेरे ख्याल से for now we had a good discussion and thank you for listening. I would like to finish formally जो अभी तक आज का content और discussion थी. You guys are welcome to ask questions. किसी ने कोई चीज़ शेयर करनी हो, कोई चीज़ आंसर लिखा हो you think is relevant सारे questions का, या फिर कोई विजन स्टेटमेंट हो, वो हो सकती है. आई वुड लव अगर सारे जो हैं, जो आप लोगों ने चीज़ें लिखी हैं, वो लिख के आप व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दें. मैं 1 by 1 इसलिए नहीं करा रहा कि अगर हम फुल डे हमारे पास वर्कशॉप टाइम होता तो वो हम करते, उस पर भी बहुत इंसाइट्स और विजडम्स, हर एक आप सबके पास विजडम्स हैं. इधर मैं स्पीकर बना हूँ, लेकिन एक्चुअली तो नॉलेज आपके अंदर है, जिसको मेरा पर्पस और पॉइंट ये है कि आप लोगों अपने अंदर से ही रियलाइज़ करें, जो मैं पास ऑन शेयर कर सकता हूँ वो करें, अप्लाई आपने करना है. तो उस सेंस के अंदर इफ़ यू गाइस शेयर, ठीक है ना, विद एवरीबडी, एंड विद आवर कोहॉर्ट व्हाट वी ट्राई टू डू इज़ हैव दिस इंक्लूसिव पॉजिटिव कल्चर. आई मेट विद एवरीबडी ऑफ यू, आई लव ईच ऑफ यू, ठीक है. यू गाइस हैव ग्रेट वैल्यूज़, ग्रेट मॉरल्स, आप लोगों का मैनरिज्म इज़ एक्सीलेंट. आप लोग इस तरह की नहीं होगी जी क्या इधर से लीच कर लो, वो कुछ कर लो, माशाल्लाह. एटलीस्ट मतलब जितना मुझे एक्सपीरियंस हो, उस सेंस में हर एक अपने विजन पे लगा हुआ है. इसमें कई अलाइंड भी होंगे एक दूसरे के साथ, ठीक है ना. सो व्हाट वी वुड लाइक टू हैव दिस इंक्लूसिव कल्चर, एंड वी देन वी रिस्पेक्ट ईच अदर एंड गिव दैट ट्रस्ट हर एक को, कि जो किसी की बात हम एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे, मैनिपुलेट नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, एंड देयर आर नो रॉन्ग्स हियर, सो वी कैन शेयर ओपनली सो दैट वी लर्न, एंड ऑल ऑफ अस आर हियर टू लर्न, राइट. So with that, thank you for listening again, and the floor is open to a discussion. मेरी तरफ से it's good, and I think Marine or Vikas is not here, but Vikas was not feeling well, but Marine is also here, so if Marine may also have some input, and just anybody, we're over with the formal session. मैं इसलिए कैमरे, वैसे ना कैमरे मैंने तो ऑफ इसलिए क्योंकि ज़रूरी है वो, लेकिन ये भी पता लग जाता है कि कुछ हो तो नहीं गया. चले So let's do it like turn by turn. हाँ श्योर, ठीक है. थॉट्स, आई मीन वी हैव स्पोकन अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स, सो सेंस में कोई आपकी थॉट्स हैं तो लेट्स जस्ट स्टार्ट. आदिल, इफ यू वुड प्लीज. I think today's session was very thoughtful. I learned about a lot of things that it changed my perspective. So I'll put in more energy into thinking into this more deeply. And we still have to figure out our vision and mission statement. But we will take this guideline and develop it. Great, well, glad, inshallah, and मेरी दुआ है कि मतलब ये यूज़फुल हो. माई प्लेजर. ऑन दैट नोट, विजन अगेन, आप कंपनियों के देखो यहाँ पे कोई कुछ भी लिख लेता है, ठीक है ना. दिस इज़ अ पॉसिबल फ्रेमवर्क दैट कैन गेट यू टू थिंक थॉटफुल थिंग्स एंड सी हाउ दिस, मतलब ब्रांडिंग और आप अपना भी मीनिंग ऑफ लाइफ कैसे इस सारे के अंदर, क्योंकि देखो एंटरप्रेन्योरशिप का जर्नी है ना, इज़ ऑल्सो वेरी लोनली एट टाइम्स, ठीक है ना. वो मतलब आपको जो है वो जहाँ जोड़ रहा होता है वहाँ शायद तोड़ भी रहा होता है, तो वो तोड़ते हुए आपने वापस जुड़ना होता है. वो सेंस के अंदर इट विल हेल्प टू हैव दिस डीपर, हैव बी कनेक्टेड विद आवरसेल्व्स डीपर, राइट. सो वी कैन टैप इनटू दैट वेल्थ और ओशन ऑफ पर्पस एंड मीनिंग जो अल्लाह ने दिया हुआ है, जो क्रिएटर ने इंटेंट किया है हमारे. मतलब मैं इस्लामिक थोड़ा नहीं होना चाहता, लेकिन बेसिकली ना जो शरिया लफ्ज़ है ना, दैट मीन लिटरली एक्चुअली मीन्स द पाथ टू द वाटरिंग होल. और जो वेल है ना, वो वाटर जो सिंबल है वो हमारे प्योरिटी का है, और प्योरिटी है अपने थॉट और नॉलेज को बेहतर करना, विजडम गेन करना. तो सेंस में वी नीड टू कीप गोइंग बैक टू द वेल टू अंडरस्टैंड थिंग्स बेटर एंड कीप ऑन गेटिंग मोर एंड मोर विजडम. सो चीयर्स टू आवर लर्निंग कर्व. और ये मतलब मेरे ख्याल से जितना मैं स्पेंड 20, सो माई जर्नी स्टार्टेड विद माई डैड, राइट, लाइक इन 99, एंड 8-9 साल के बाद लिए आई वॉज इन कंस्ट्रक्शन.
उसके बाद से अब वहाँ से लेके 2018 तक तो आई डन माई ओन बिजनेस एंड स्टफ। ये पिछले 1.5-2 साल हुए हैं कि मतलब मैं सेटल्ड इनटू ये वाला इंस्पायर का और इंक्यूबेशन और मेंटोरिंग यहाँ पे। तो उस सारे टाइम में आई वुड से यू नो देयर बीन लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स। आई मीन थिंग्स हैव ब्रोकन मी एंड थिंग्स हैव एक्सेल्ड और पुश्ड मी इन सच अ वे आई कुड हैव नेवर इमेजिन्ड। वो सारे में आई थिंक बीइंग कनेक्टेड विद योरसेल्फ, कीपिंग गोइंग बैक टू द वेल, ठीक है ना, फॉर इंसाइट इनटू वन सेल्फ एंड रियलिटी, वो आपको मोटिवेशन और ड्राइव देता रहता है टू बी ब्रोकन एंड टू रीबिल्ड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। थैंक यू फॉर द वर्ड्स सादिक। एनीबडी एल्स? Hassan, say, Hassan, what did you think if you're still with us? Was anything aligned and helpful today for PEV? हसन मेरे ख्याल से ब्रेक पे है। ठीक है, अलीज़ा, अली, ज़ुबैर, any other words before we finish? ठीक है, थैंक यू एवरीबडी। चलें, हेलो, वी गेट टू, एक झलक हमें मिली अलीज़ा की, फिर गायब हो गई। ठीक है, कोई नहीं। अच्छा लुक गाइस, अब हम वी आर ऑल ऑन व्हाट्सएप, ठीक है ना। सो लेट्स हैव दिस फ्रैंक ओपन कल्चर रियलिस्टिक थिंग, ऑथेंटिक सिंसियर विद रिस्पेक्ट, ठीक है ना। शेयर एनीथिंग, एनी क्वेश्चंस, एनी थॉट्स। मैं वही बता रहा हूँ ना, ये जो जे वाली कहानी है ना, ये लोगों ने, मतलब आप जैसे लोगों के साथ ही बातें करते करते जी लोगों ने आज भी बड़े मज़े का वो जमात वाला इस तरह के निकल आए तो। सो यू नो इट्स गुड फन एंड यू नो बीइंग रियलिस्टिक एंड अच्छा रहता है छोड़ो। इसलिए भी मुझे लगता है कि एंटरप्रेन्योर्स के जो नेटवर्क्स होते हैं ना, बड़े स्ट्रॉन्ग नेटवर्क्स होते हैं, आपस में सब एक तरह से जंगी वो होते हैं इकट्ठे इन द फील्ड, कॉमरेड्स। वो सर्च जंग टाइप। एग्जैक्टली राइट। ठीक है, सो वी आर ऑन द फ्रंट लाइन टुगेदर नाउ, ठीक है। आई गॉट एवरीबडीज बैक एंड एवरीबडी कैन हैव माई बैक। So thank you everybody and I'll catch you guys एक तो one-on-one sessions में, otherwise next Tuesday we're going to talk about design thinking, ठीक है ना। कि अभी हमने सब कुछ कर लिया, हम सोच भी रहे हैं, हमने प्रॉब्लम देखी, अब हम एक्चुअली कर कैसे सकते हैं ज़िंदगी में इम्पैक्ट, ठीक है ना। दिस वाज मोर अबाउट द क्या इम्पैक्ट करें, क्यों करना चाहिए, सोना जाऊँ जाके मैं, ठीक है ना। द नेक्स्ट वन इज गोना बी लाइक अच्छा कुछ कर सकते हैं, कुछ करना भी चाहिए, गेम तो है, क्या करें। Thank you everybody. Enjoy your weekend and day, and I will catch everybody soon. And please just keep on sharing. I would love to find out more about you and your business and what we're doing. Thank you. Thanks a lot. Thank you, everyone. Thank you everybody. Allah Hafiz. Best of luck Hafiz. to you all.